तो सेट जैसे आज के टाइम पे ना बहुत लोग ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से हेट करते हैं, राइट? सो व्हाट अबाउट यू? डू यू हेट जॉब्स, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स? में ऑनलाइन बिजनेस आप पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हो, यहाँ पे कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया आपको? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम राइट नाउ? कितने लोग आपकी टीम में काम करते हैं? वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी? आपका मेजर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी? हाउ मच मनी डू यू मेक मंथली? मतलब कितना कितना इनकम आता है आपको अभी के टाइम? ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी चीज में गर्लफ्रेंड से Hi everybody, welcome to the show Gehraya. It's episode number 1 and today we are having a very special guest with us and we will go deeper in this entire session. We will learn about his entrepreneurship journey, his entire journey, his failures, his success, his personal life, professional life, whatever going inside his life, his future plans. हाँ, आपके भी वो जो क्वेश्चंस हैं जो आपने उनके कमेंट्स पे सोशल मीडिया पे डाले थे, we picked that question and we will be asking in this session. So I request you to watch this webinar till the end, this session till the end, right? This will gonna be so valuable for you, right? Because we are not just gonna talk about this, business, right? We will go deeper and we will learn. हम इन्हें आज बहुत गहराइयां से जानने वाले हैं, right? And this is the motive of this Gehraya show. So today we have a guest. His name is Sid Upadhyay. He's none other than Sid Upadhyay, and he is a sales and marketing guy. He is a coach. He's a content creator. He is a YouTuber, right? He has already generated $50,000. Yeah, you heard it right. $50,000 in last 2 years. So Sid, please turn on your video and audio, and let's start this podcast. Please turn on the video. Yeah, first of all, thank you so much, Ganesh, for this warm welcome. And I'm glad कि आपने मुझे यहाँ पहुँच दी ताकि बेसिकली मैं अपनी जर्नी के बारे में अपने नॉलेज, अपनी वैल्यूज सारी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. And thank you so much for having me today. We both are working in this industry. We both are here to add value to people's life, to make their journey easy, to inspire them. And I'm glad that you have accepted our invitation. You are here in the session to add value to people's life. Thank you so much for taking out, your time for this session. Pleasure is mine, bhai. Pleasure is mine. All right. So before we start, Sid, since you do a lot of things, right? So how do you define yourself? You define yourself as a YouTuber, as a content creator, as an entrepreneur, or because you're doing a lot of things. I have seen a lot of your videos on YouTube also. So how do you define yourself as an affiliate marketer, sales coach, mentor? What? How do you define? Again, see the same thing. I don't call myself coach. मैं कोई coach नहीं basically. I'm just like a person who believe in constant evolving. मैं हमेशा बोलता हूँ basically हर एक वीडियो में, I'm the guy who believe in constant evolving. I'm the guy who believe in working with good people. I'm the guy who believe in working hard and achieving his goals. That's it. I'm not a coach. Yes, I call myself entrepreneur. You can say content creator plus entrepreneur. अगर आप उन दोनों को मिक्स कर दोगे बेसिकली, then you can call myself whatever you want to call. अगर दोनों को मिक्स करके छवि बनेगा बेसिकली, content you can call. ठीक है, बेसिकली वो बोल सकते हो. बट उससे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, आई एम द गाय हु बिलीव इन कांस्टेंट इवॉल्विंग. कहने का मतलब है कि वो पर्सन जो कल 99 था आज 100 है और कल बेसिकली 101 रहेगा, उसके बाद 102 रहेगा. सो दैट्स हाउ आई कॉल माई सेल्फ. Wow, that's amazing. Glad to hear this, man. Right, and even I'm watching you from last 2-3 years. If you remember, we had a show on 2022. This is not our first podcast, right? We met in 2020. हमने एक session किया था, if you remember. Right. I know. Remember. Yeah. So, Sid, let's not talk about Sid Upadhyay in 2022. Let's talk about Sid Upadhyay in 2025, right? What people should expect from you in 2025? 2025 में Sid Upadhyay का क्या गोल्स हैं, कहाँ पे आप अपने आप को देखते हो, प्लीज? ब्रो डेफिनेटली मे बी मैं कुछ कंपनी सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, कंपनी स्टार्टअप, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो तो डेफिनेटली मैंने अचीव कर लिए होंगे प्रॉपर्ली. बट मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे भी नहीं पता कि आज से एक बाद में क्या कर रहा हूँ, आज से एक बाद में क्या कर रहा हूँ. मैं इतना लंबा सोचता ही नहीं यार. आई ऑलवेज थिंक अबाउट, मैंने आज जो डेट है हमारी 1 दिसंबर है, आज ही बैठ के मैंने बस अपना एक नेक्स्ट मंथ का प्लान बना रखा है. फिर उस प्लान को मैंने वीक में डिवाइड किया. उस वीक को फिर मेरा आज का कंप्लीट शेड्यूल था, आपके साथ का पॉडकास्ट का टाइमिंग था, ठीक है. तो उतना लंबा कौन सोच रहा है? नो वन नोस कि आज से 1 साल के बाद क्या, 2 साल के बाद क्या होने वाला है. बट यस, अगर आप जनरली मुझसे पूछ रहे हो तो फिर सिंपल है, डेफिनेटली आज से 2 से 3 साल के बाद मैं कुछ ना कुछ बिल्ड ही कर रहा हूँ, खाली तो नहीं बैठा हूँ यार, एंड अच्छा खासा छाप रहा हूँ. And the most importantly कि लोगों की हेल्प कर रहेंगे through our content or through our product and through our services. Perfect. Sounds good.
सो सेट जैसे अभी मैं 2-3 साल से आपको देख रहा हूँ, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर करियर, राइट? यू आर टेकिंग दिस जर्नी अहेड, आप इसी जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे हो। तो आप पहले से ही इतना क्लियर थे कि मुझे इस डिजिटल चीजों के अंदर जाना है, इस बिजनेस के अंदर जाना है, या फिर आप काम करते करते आपको क्लैरिटी आती चली गई? ब्रो तो क्लैरिटी समथिंग जो कि स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं थी। पहली चीज तो डिजिटली के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम अपना जर्नी स्टार्ट किया था इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में, मैंने जब अपना फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उस टाइम मेरा फोन भी नहीं था। सिस्टर थी, उनकी जॉब चली गई थी, लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है, तो उनका ही फोन में यूज करता था ऑन डेली बेसिस पे, इंस्टाग्राम यूज करने के लिए, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मेरा बगल का दोस्त है, मतलब घर के बगल में रहता है, एंड ही यूज्ड टू टीच मी कि लाइक हाउ टू पुट स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम दैट टाइम इन 2020, राइट? ठीक है, तो वो 2020 2020 इन मार्च मैं इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आया था। 2020 अप्रैल के आसपास मुझे इतना याद है कि मैं इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब एंड ऑल, इस सारे प्लेटफॉर्म पे बेसिकली मैं आ चुका था। और क्लैरिटी ब्रो देखो, आई डोंट नो कि आपको कैसे दिखता है कि मेरे पास बहुत सारी क्लैरिटी है, बट आई डोंट थिंक सो, ठीक है। और इवन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम। आपने सुना होगा CHSL CGL, राइट? ठीक है, तो जैसी बात है, मैं पैरामाउंट से कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। जर्नी तो बहुत ही अजीब थी यार। आफ्टर 12th लाइक पहले JMS की प्रिपरेशन किया, ठीक है, उसके बाद 3 मंथ के बाद फिर मैंने वो छोड़ दिया बिकॉज आई वाज डूइंग सेल्फ स्टडी, एंड देन उसके बाद फिर नेवी का, उसके बाद फिर SSB, उसके बाद लाइक आर्मी, मतलब जो एग्जाम सारे थे सबको फिल करना, सबके एग्जाम देना, एंड फिर BB का भी दिया। फिर मन में था कि MBA करना है, मतलब लाइक हाथ पैर मारे जा रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली करना क्या है। देन आई थॉट कि यार एक काम करते हैं, CHSL पकड़ते हैं, अभी ग्रेजुएशन अपनी हुई नहीं है, तो CHSL की दबा के 1-2 साल करते हैं प्रिपरेशन, उसके बाद उसको क्रैक करेंगे अपना आराम से। फिर उसके बाद पैरेलल में अपना लाइक मैंने MLM स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लॉजिकली मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना रिटर्न आ जाएगा, बट नो डाउट 8 मंथ काम करने के बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, कंप्लीट पैसे भी डूब गए बेसिकली वहां पे। उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद फिर इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ गए। ओके, कैसे कैसे आप आगे इसके अंदर अचानक? ऐसे इसकी ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता है। लाइक मेरे मेरे टीचर थे फिजिक्स के, उनका नाम है सचिन, ठीक है। देन ही वाज सेइंग कि यार एक तेरे को ना वो करना चाहिए फार्मेसी, ठीक है। और मैंने कभी नहीं बोला ये सोशल मीडिया के ऊपर, कभी बात शेयर नहीं करी फार्मेसी। तो हम 4 दोस्त थे, हम सब खड़े हुए थे, हमने कहा ठीक है यार। उन्होंने हमें बहुत चीजें बता दी कि फार्मेसी में ये है, वो है, ये है, वो है। तो मेरे एक भाई है, उनका नाम है विश्वजीत, ही इज इन नेवी, ओके। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे किसी एक पर्सन से कनेक्ट करवाया जिनका नाम था आदर्श पांडे। उन्होंने बोला कि ये भी इसी फील्ड के अंदर है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि फार्मेसी कर रहा है, इससे बात कर ले एक बार, एंड क्या पता तो वो हेल्प कर पाए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे बातचीत किया, उनका नंबर सेव किया, मैंने उनका नंबर सेव किया, मतलब कि मेरा फोन नहीं था, सिस्टर का फोन था, उसी नंबर में मैंने सेव किया। देन फिर मैंने उनका स्टोरी देखा, मैंने कहा ही वाज डूइंग समथिंग काइंड ऑफ $25 वन अप, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वो कुछ अच्छा, कर रहे थे, ओके। मैंने कहा इज मेकिंग मनी इन लॉकडाउन। ये तो सही लगा मेरे को, मुझे लगा था कि ठीक है यार जो भी है। तो वहां पे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट था $25-35 के आसपास में, ठीक है। और फिर वो इन्वेस्टमेंट अपना डन किया, उसके अंदर आया, मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल सही लगा नहीं, ठीक है, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया बेसिकली वहां पे। उसके बाद फिर मतलब कहीं ना कहीं वो जरिया था उस डिजिटल वर्ल्ड में अंदर आने का, अंदर आ गए। फिर बहुत सारी पर्सनालिटी मिली, डिफरेंट डिफरेंट लोग मिले, मेरी तरह आपकी तरह ही। जब मैं उनको उनको मैंने स्टॉक करना चालू किया, फॉलो करना चालू किया, मैंने कहा यार लोग तो छाप रहे हैं ऑनलाइन, लोग तो बहुत सही कमा रहे हैं, ठीक है। फिर बेसिक देखा, फिर बहुत सारे लोग मिले, लाइक मेंटर्स मिले, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, इनको फॉलो करना मैंने चालू किया, इनके वर्कशॉप बेसिकली मैंने अटेंड किए। उसके बाद देन फिर एफिलिएट मार्केटिंग में कंप्लीटली एंटर कर गए। उसके बाद देन फिर प्रॉपर्ली स्किल्स के ऊपर काम किया, धीरे 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 आगे प्रोसेस करते रहे, और फिर ठीक ठाक किया, सिंपल। बट जो जर्नी थी वो लाइक अलग ही थी। अगर अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर मैं उस टाइम अपने भाई से बात भी नहीं करता कॉल पे, और ये बोलता नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि लाइक मुझे उनका नंबर प्रोवाइड करो, तो शायद आई डोंट नो कि जर्नी स्टार्ट होती कि नहीं होती। वो तो नहीं, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड ऑल, सारी चीजें तो कहीं ना कहीं वही है, कनेक्टिंग द डॉट्स एंड ऑल सारी चीजें। Okay, that's how you started, right? एग्जैक्टली दैट्स हाउ स्टार्टेड। इवन उससे पहले भी मैंने स्टार्ट कर दिया था MLM, ठीक है। और MLM गुड है बैड है वो चीज चलो बात की बात है, बट कहीं ना कहीं उस चीज ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कहने का मतलब कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, बट लोग के पास जाना मिलना, इवन ये बेसिक चीजें होती है आपकी बिजनेस के अंदर में। बट कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत हेल्प किया MLM ने, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और कम्युनिकेशन। यस, वी कैन से यस। Yeah, yeah. So, Sid, जैसे आज के टाइम पे ना बहुत लोग ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो थोड़ा गवर्नमेंट जॉब से हेट करते हैं, राइट? सो व्हाट अबाउट यू? डू यू हेट जॉब्स, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स? ब्रो लाइक आई डोंट हेट गवर्नमेंट जॉब्स, आई हेट दोज पीपल जो कि सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड है। डिपेंड का मतलब क्या है, लाइक देखो कहने का मतलब है कि मेरा एक दोस्त है, उसका भाई है, और इट्स बीन मोर देन 5 years, ठीक है,
जो कि प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, द फैमिली कंडीशन इज नॉट दैट मच गुड, ओके। और जो दोस्त है मेरा वो भी अभी जॉब कर रहा है, 5-6 हज़ार रुपए की बेसिकली जॉब कर रहा है राइट नाउ अभी, ठीक है। काफी क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको बोलता हूँ कि लाइक यू कैन वर्क विद मी एंड ऑल, हम अच्छा कर लेंगे डेफिनेटली, मैं उसको बिलीव दिलाता हूँ, बट कहता नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो चीज ठीक है, बट इट्स कंप्लीटली कोई इशू वाली वहां पे बात नहीं है, ठीक है। बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years एंड वो पर्सन हमेशा रहता है 1 नंबर से, 1.5 से, ठीक है। इवन आज मैंने लगा कि सब झूठ होगा, मैंने लास्ट इस बार देखा 0 पॉइंट समथिंग कुछ से रह गया उसका भाई कहने में। मैंने कहा यार फिर यू नीड टू बैलेंस ना, यू नीड टू बैलेंस ना। अगर आप वो चीज कर रहे हो, आपकी फैमिली भी है, देन आपको देखना पड़ता है कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली हो, ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं, बेसिकली मैं वो पैरेलल चीजें भी कर पाऊं, ठीक है। और राइट नाउ ब्रो, एज ऑफ नाउ इन टुडेज वर्ल्ड, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने का मेरे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो रखा है, बिकॉज राइट नाउ अभी मेरा पर्सपेक्टिव कंप्लीट डिफरेंट है चीजों को लेकर। मैं कहने का मतलब है, रिसेंटली मैं भी वीडियो देख रहा था जहां पे था कि गवर्नमेंट जॉब इज गुड और बैड, तो फिर हमें बहुत सारे नंबर्स थे, कितने लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली। अमन की और देखी अगर क्या? अमन दत्तरवाल की। अमन दत्ता ने देखी थी सोच सोच विद मोहक, ऐसा कोई चैनल है राइट, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने उनकी मोहक की, मोहक। हाँ, मोह की देखी थी चैनल, उनकी वीडियो देखी थी मैंने, तो काफी सही लगती है वीडियोस जो उनकी, ठीक है। और ध्रुव ध्रुव की वीडियोस होती हैं, तो उनकी देखी थी मैंने, क्या नाम है, मोह की। एंड ही वाज लाइक कि अगर एक आपकी जॉब निकल रही है प्यून की भी, देन उसके लिए भी बेसिकली फिर पीएचडी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज फिर बहुत सारे फिर यार फैक्टर आते हैं वहां पे, ठीक है। कि लाइक आपका बड़ी से बैक मिल रहा है आपको कंप्लीटली, इनकेस अगर 60 साल के बाद भी आपको सैलरी मिल जाएगी, अगर कोई बंदा मर गया तो फिर आपको क्या नाम है पेंशन मिल जाएगा, और सारी चीजें, ये सारे फैक्टर दिखते हैं। इवन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी सारी चीजें कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है आपको लड़की अच्छी मिल जाएगी, तो ये सारे हैं। सबसे बड़ा तो रीजन यही इन टुडेज वर्ल्ड देखो यार, अभी भी है। इवन मुझे मेरे चाचा जी जो बोलते हैं कि क्या कर रहा है फालतू में, ऑनलाइन है, इससे अच्छा की तैयारी वारी कर ले कुछ। मेरे जीजू मुझे बोलते हैं कि तैयारी व्यारी कर ले, आईपीएस की आई, मैंने कहा कुछ भी यार, है। ठीक है। तो भाई देखो, देखो मेरा मानना क्या है ना कि गाइस उनको जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में जिनका एक्चुअली इंटरेस्ट हो, जिनको लिटरली अगर आईपीएस ऑफिसर आईएएस कोई ऐसे नहीं बन जाएगा यार, आपका वो लिटरली इंक्लिनेशन होना चाहिए उस साइड पे। अगर आप एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कोई ना कोई पर्सन होगा, आप उस चीज से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रखे होगे कि हाँ मुझे भी आईएएस बड़ी से लाइक आर्मी में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वो चीज लगता है। बट जस्ट बिकॉज कि आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जा रहे हो क्योंकि यू वांट बड़ी से, क्या बोलते हैं उस चीज को, कि एक सैचुरेटेड सिक्योरिटी। लाइफ, एग्जैक्टली सिक्योर लाइफ आपको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए डिफरेंट डायमेंशन नहीं आता लाइफ का, जो कि मुझे लगता नहीं कि वो चीज सही है। बट लोग फिर भी भाग रहे हैं आज के टाइम पे। और ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब को हेट करते हैं ऑल, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है। So Sid, I got your point of view on this government job. What exactly you're trying to say is the mentality. You had the mentality of being secured in the government job. That most people think, right? ज़्यादा लोग लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर एक बार उनकी लग गई तो उनकी लाइफ सेट है। एक वर्ड आता है बड़ा कॉमन सा, हर फैमिली मेंबर बोलता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाइफ सेट, बढ़िया बीवी, अच्छा दहेज, 4 पहिया गाड़ी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? आप बीमार रहोगे, ये रहेगा, तो इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स देयर चॉइस, लाइक इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स देयर चॉइस, है ना। तो 100%। अगर उनको चाहिए वो चीज, अगर आपको लेनी है तो वो चीज ले लो। बट जस्ट बिकॉज कि हर कोई वो चीज भाग रहा है उस चीज के पीछे, तो उस चीज के पीछे दोबारा से जाना वो कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है। बिकॉज आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है कि आप और डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी अवेल कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप सर्च हो रहे हो गूगल पे, अगर आप जो बेस्ट सर्च होते हैं वो जॉब्स के बारे में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं, सो एवरीवन इज सर्चिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। बट स्किल्स के बारे में देयर आर वेरी लेस पीपल जो इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स बुरी नहीं है, बट जो मोस्ट ऑफ द पीपल है, बहुत ज्यादा यूथ है उस चीज के पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। True. And even they have no interest in that, right? Some people are preparing for IAS because of breakup mein aa gaye, right? Movies dekha hai, right? And that's why they are preparing for that. But they don't like history. Let's say अगर मुझे किसी जॉब के अंदर जाना है, मैं IAS के अंदर जा रहा हूँ, तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं मुझे उससे प्यार होना चाहिए, बिकॉज वहां पे मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर लगना नहीं चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल we work in this field, right? We work for 14 hours, 16 hours और लगता ही नहीं हमने कुछ किया है कि नहीं? और लेट्स से अगर किसी का इंटरेस्ट इस चीज के अंदर नहीं है, राइट, वो 2 घंटे काम कर रहा है, उसको लग रहा है मैंने काफी टाइम काम कर लिया है, देन आई डोंट थिंक ही कैन सक्सीड इन दिस मार्केटिंग आल्सो। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर उसके लिए सफल होना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज जो हम कर रहे हैं वो हमें पसंद भी होनी चाहिए। दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक, एंड इवन दैट्स व्हाट आई थिंक, राइट? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर इंटरेस्ट है, गो अहेड विद दैट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली द सब्जेक्ट दैट यू आर रीडिंग, और उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आपका हो जाएगा। अगर आपका है ही नहीं उसके अंदर, देन व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट, जस्ट टू गेट सम सैलरी एंड कुछ फैमिली ने ब्रेन वॉश कर दिया, कुछ आपने देख लिया मूवीज वगैरह। सो या दैट्स माय पर्सपेक्टिव। सो Sid, let's move to the next question, and हमारा जो next question है थोड़ा इंटरेस्टिंग, राइट? वो ये है कि हाउ डू यू टेक कंपटीशन? आप कंपटीशन को कैसे देखते? हाउ डू यू सी कंपटीशन? लाइक see so many people are coming to the coaching business, so many people are sales coach, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज इंडस्ट्री के अंदर। हाउ डू यू see this? आपको डर लगता है कभी कंपटीशन से?
नहीं ब्रो, कोई कंपटीशन नहीं, बट कंपैरिजन मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, कंपटीशन कंपैरिजन, बट दोनों ही आपस में काफी म्यूचुअल है, राइट, ठीक है। कंपटीशन तो मैंने आज तक सीरियस तरीके से वो देखा नहीं, ऐसा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे इससे बेटर करना है, इससे ये करना है, इससे ये करना है। कंपटीशन सीरियसली मेरा अभी तक, आज तक मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इससे मुझे बेहतर करना है। हाँ, कंपैरिजन आया माइंड में, ठीक है। अगर कंपैरिजन था, फिर कहना है आपका वो कोरिलेशन उस चीज से। और कंपैरिजन आता है किससे, लाइक मैं कभी भी अपने आप को अपने लाइफ से कंपेयर नहीं करता कि ये पर्सन इतना कर रहा है, मैं भी इतना कर रहा हूँ। मैं हमेशा करता हूँ अपने से काफी, जो कि 100 गुना आ गया, ठीक है, 1000 गुना आ गया। लाइक एक यूट्यूबर है जो कि कम से कम 1 2 3 मिलियन के आसपास है, ठीक है। एक कोई एंटरप्रेन्योर जो कि अपनी 2 से 3 कंपनी रन कर रहा है। एक कोई ऐसा पर्सन है जिसने इतनी की फंडिंग रेस कर रखी है, फिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो रन कर रहा है। तो मैं उससे कंपेयर करता हूँ, वो भी इन टर्म्स ऑफ माई एफर्ट्स, कि मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, वो पर्सन के पास कितनी नॉलेज है, उस पर्सन का नेट वर्थ कितना है। नॉट नेट वर्थ मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि नेटवर्क उनका कितने लोगों को जानता है, कितने साथ पॉडकास्ट कर रहा है, कितने सारे लोगों के साथ मिल रहा है, उसके लाइफ में कितना लेवरेज है। और मैं भी सेम एज का ही हूँ, बट मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है। तो मैं इस चीज को कंपेयर करता हूँ, और मैं इस चीज को कंपेयर करके कभी मैं डिमोटिवेट फील नहीं होता, मुझे हमेशा मोटिवेशन फील होता है। सिंपल सी बात है, बट डिपेंड करता है, इफ योर कंपैरिजन इज गुड, डिपेंड करता है कि आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हो। अगर मैं कंपेयर करूँ उसके पैसे से, लेविस लाइफ से, कि भाई बंदा तो फ्लाइट में घूम रहा है, ये कर रहा है, मस्त होटल है, फ्रेंड्स है बहुत सारे, एंजॉय कर रहा है लाइफ के अंदर में, मैं यहाँ पे पिस हो रखा हूँ एक रूम में बैठ के यहाँ कंप्लीटली। बट नहीं, मैं कंपेयर करता हूँ कि भाई बंदा कितनी नॉलेज है, या उसकी 100 लोगों की टीम है, कैसे मैनेज कर रहा होगा वो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट देखना, सेल्स देखना, मार्केटिंग देखना, फाइनेंस देखना, ऑपरेशन देखना, एचआर देखना, ये सारी चीजें कैसे होंगी प्रॉपरली, ठीक है। बंदा कैसे मैनेज कर रहा होगा 21 साल की 22 साल की एज में। तो मैं वो देखता हूँ, तो फिर वो ना एक अलग ही माइंडसेट देता है कि यार, इफ दिस पर्सन कैन डू, देन व्हाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता। बेसिकली कंपटीशन में ऑनेस्टली बोलूं, आज तक मेरे माइंड में नहीं आई कोई कंपटीशन मेरी फील्ड के अंदर है ना, और सारी चीजें मैं देखता हूँ कि हाँ, कल से बेहतर कर पा रहे हैं, लास्ट से बेहतर कर पा रहे हैं, दैट्स गुड, सिंपल। Okay, so what's your thought on this word, saturation? A lot of people think, even marketers, affiliate marketers, content creators, coach, कि यार ना अभी सैचुरेशन आ रहा है, बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन के बाद कंटेंट क्रिएशन फील्ड के अंदर आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे ना ऐसा लगता है कि यार ये चीजें सैचुरेट हो जाएंगी, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? सैचुरेशन किस चीज को लेकर? सैचुरेशन अगर आप बोल रहे हो कि हर कोई कंटेंट बन जाएगा, in terms of field, right? Let's say people think that कि बहुत ज्यादा content creators हो जाएंगे तो मेरे content पे reach बहुत कम जाएगी, right? Nobody will gonna watch me, nobody will gonna come for my webinars, nobody come for my sessions. That's what most people think, right? जो marketing के अंदर, affiliate marketing के अंदर, जैसे you teach people, right? So उनको लगता है ऐसा कि अगर जैसे लोग आ रहे हैं affiliate marketing के अंदर, बहुत सारे लोग, तो यार लोग उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे, इतना competition बढ़ रहा है, मेरे साथ कौन करेगा? That's a fear of lot of people. आपने देखा भी होगा। आई अंडरस्टैंड। हाँ, और देखा भी बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 चीजें, एक है कंटेंट क्रिएटर, एक है एफिलिएट मार्केटर्स, मैं दोनों में ऐसा करता हूँ। कंटेंट क्रिएटर का आंसर तो बहुत अच्छा दे रखा था मनीष भाई ने, ठीक है। उन्होंने ये बोल रखा था, मनीष भाई वो जो कि रणवीर लावादिया भाई के मेंटोर हैं, तो उन्होंने क्या बोल रखा था कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाए। मैं तो बोलता कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाए और हर कोई एक दूसरे की वीडियो देखे, कह रहे ये हो जाए, कह रहे ऐसा होने नहीं वाला, ठीक है। तो चीजें यहाँ पर ये नहीं कि हर कोई कर रहा है, चीजें यहाँ पर कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग उसको मोनेटाइज कर पा रहे हैं। अभी कम से कम एक 1.2 करोड़ या फिर 2 करोड़ के आसपास हमारे कंटेंट क्रिएटर इंडिया के अंदर में, बट कितने लोग मोनेटाइज कर पा रहे हैं? 10,000 20,000 ऐसा कुछ नंबर है, फिर 1 लाख ऐसा कुछ नंबर ऐसा देखा था रिसेंटली मैंने। तो वहां पर क्या है कि भाई सैचुरेशन तो यार काफी हार्ड है। अगर बात करें एफिलिएट मार्केटिंग वाली फील्ड में, आप उस पर्सन से पूछे, जो बंदा सोच रहा है सिचुएशन के बारे में, कितने लोग अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आ रखे हैं, जो अभी हमारी नई इंडिया में चल रही है एफिलिएट मार्केटिंग, लाइक दिस गुरुकुल, लीड्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, ठीक है। अभी कितने लोग आ रखे हैं? कि कंप्लीट 10 लाख लोग आ चुके हैं? The answer is no, बिल्कुल भी नहीं। एंड जस्ट सी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं है बेसिकली यहाँ पे। हाँ, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो दिक्कत वाली बात होने वाली है। तो आपकी कंपनी में वो फिर टाइम टू टाइम बेसिकली अगर मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे, तो आप अगर आपका रीसेल का ऑप्शन आ रहा है कि आप सेकंड और थर्ड सेल्स, मतलब थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट भी आप उनको अपसेल कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं काफी बेहतर रहेगा। अगर एक ही प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, आप बताओ स्टॉक मार्केट कितना टाइम से, मुझे ये बताओ। लोग बहुत टाइम चल रहा है, पता नहीं सिचुएशन है उस चीज के अंदर, क्या हर किसी बंदे ने ऐसा करना चालू कर दिया? आंसर इज नो, ठीक है। तो सैचुरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं नंबर लेके चलूं, अभी आपने बोला 10, यार मैं जहां पे रहता हूँ ना इंडिया में, क्या नाम है, सोनिया विहार में। सोनिया विहार लाइक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे दिल्ली के अंदर में, बट यहाँ पे 7 लाख की जनता है, और 7 लाख पूरे अभी एफिलिएट मार्केटर्स नहीं होंगे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अभी जो इन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। नंबर पे याद है कि इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, मैं सबको कैलकुलेट कर दूंगा तभी 7 लाख भी नहीं होंगे। तो मैंने कर रखा है ऐसे, मुझे 5-6 मंथ हो गए मेरे को छोड़े हुए, मैं नहीं कर रहा बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में भी, ठीक है। बट इससे जब मैं कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन थी
इस प्लेटफॉर्म में इतने, इस प्लेटफॉर्म में इतने, मगर मैं सबको कैलकुलेट भी कर दूंगा तभी कम से कम 7 लाख भी नहीं होने वाले, और मैं जहां रहता हूँ वहां पे 7 लाख की जनता है। फिर इसके बाहर सारे और शहर हो गए, दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद पूरा सारे और बड़ी से लाइक क्या नाम है ये शहर हो गए, फिर पूरी इंडिया हो गया, तो सैचुरेशन का तो सवाल ही नहीं आ रहा है तो। एक और चीज है ना यार कि अगर आप सही मायने में देखा जाए तो अगर मैं मान के चलता हूँ 2 लाख लोग भी आज एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करके रखे हैं, बट आई कैन प्राउडली, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस कि आउट ऑफ दैट 2 लाख पीपल ओनली 500 और 1000 पीपल आर वर्किंग कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंट कोई नहीं, लोग ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं, राइट? वो कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, और आई थिंक उसका नंबर सिर्फ 1% होगा। जितने लोग ज्वाइन किया, अगर 7 लाख, अगर मैं मान चुका हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो किया भी होगा, तो उसमें से मेरे ख्याल से 7000 लोग भी एक्टिव नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज स्टार्टिंग इज इजी बट मेंटेनिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। कंसिस्टेंट रहना ये सबसे कठिन काम, दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? कंप्लीटली एग्री ब्रदर, कंप्लीटली एग्री। पहला जो आपका स्टेप होता है वो तो स्टार्ट करना ही होता है, सबसे हार्ड स्टेप। और जो सेकंड हार्ड स्टेप होता है बेसिकली आपका कंसिस्टेंट रहना होता है, जहाँ पे मोस्टली लोग गिव अप कर देते हैं। सक्सेस रेट से कम क्यों होता है यार? 100 में से 90 लोग कोई डिसीजन लेते ही नहीं है, 10% लोग डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और 10 में से एक बंदा रहेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा, और वो बंदा कंसिस्टेंट रह के रिजल्ट लेकर आ पाए, कभी डिमोटिवेट मोटिवेट हो, सब चीजों को हैंडल कर पाए प्रॉपरली, अपने पर दोबारा इन्वेस्ट कर पाए, आगे बढ़ता रह पाए, तब देखा ना कहीं वो बंदा रिजल्ट क्रिएट कर पाएगा। दैट्स वाई तो फिर सक्सेस इशू कम होता है यार। अदरवाइज हर कोई स्टार्ट करे, हर कोई रिजल्ट क्रिएट कर ले, बात ही फिर अलग हो जाएगी। ट्रू। सो सेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? एंड आज हम एक वर्ड सुनते हैं, रिग्रेट, राइट? और आई थिंक हम सभी को किसी न किसी चीज का रिग्रेट है कि यार काश वो चीज हमने कर ली होती। आपको ऐसा कौन सा रिग्रेट है कि यार काश वो चीज हमने कर लेते ना उस टाइम पे, तो आज बात अलग होती? तो कोई रिग्रेट ऐसा? रिग्रेट यार, रिग्रेट पता नहीं यार मैं इसको रिग्रेट बोलूं क्या बोलूं, क्योंकि मेरा ना 12th क्लास में एक ये ना बहुत ही ड्रीम टाइप में था कि कॉलेज जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ, ठीक है, और क्लब जाएंगे, यहाँ घूमेंगे दोस्तों के साथ बाइक पे, ये वो पूरा ग्रुप होगा एंड ऑल सारी चीजें। तो 12th क्लास में था, मेरा ऐसा माइंड में था कि कॉलेज में बहुत मजा आने वाला है, रेगुलर कॉलेज होगा, ठीक है, सुबह जाएंगे शाम तक आएंगे फुल, ठीक है, पर अगले दिन सुबह 5 दिन कंप्लीट एंजॉय, 2 दिन एंड ऑल, ये सब चीजें थी। तो और मैं कॉलेज मेरा ओपन से चल रहा है कॉलेज, ठीक है, तो मैं रेगुलर कॉलेज गया ही नहीं, इवन अपने कॉलेज में गया हूँ सिर्फ एग्जाम देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो कहना एक रहता है कि यार काश अगर मैं वो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर पाता तो शायद मजा आता, ठीक है, बट मुझे रिग्रेट है भी नहीं भी है, बिकॉज उससे ज्यादा मैंने कहीं ना कहीं अलग किया लाइफ में, काफी एंजॉय किया, काफी चीजें भी करी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करी। अगर मैं वहां नहीं कर पाया तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है मैं फिर मैंने यहाँ पे कंप्लीटली एफर्ट लगाया। इवन मैं फिर इस चीज को ऐसे भी देखता हूँ कि अगर कोई पर्सन कॉलेज के अंदर है, ठीक है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, इवन कॉलेज की डिग्री प्लस वो कुछ डिफरेंट कर सकता है। बट अगर मैं मेरे पास कॉलेज अगर मैं रेगुलर नहीं जा रहा हूँ तो आई डोंट हैव डिग्री, राइट? अगर वो छोटी डिग्री लेके क्या करूंगा बेसिकली मैं, देन मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है स्किल्स, और मुझे उस पर ही प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। सो आई डोंट हैव ऑप्शन नहीं है, तो फिर आई नीड टू वर्क मोर देन जो पर्सन काम कर रहा है। अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है, आई नीड टू वर्क 10 आवर्स इन अ डे, 14 आवर्स इन अ डे, 12 आवर्स इन अ डे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें, तो यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ रिग्रेट, यू कैन से। I feel that यार, मुझे भी लगता है कि यार कॉलेज लाइफ थोड़ा सा अगर एंजॉय करते तो मजा आता, राइट? आई नो सेड। अच्छा, आपको क्या लगता है स्कूल लाइफ आपकी कैसी थी? स्कूल लाइफ वाज गुड यार, स्कूल लाइफ वाज गुड। मैं काफी बोला था फोर्थ क्लास तक मैं काफी बोला था, 4-6 तक, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे अच्छे दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे अच्छा बना दिया, ठीक है। और अच्छा, फिर पहले आप बोले थे, अभी कैसे हो? अभी भी मैं ठीक ही हूँ, मैं न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल। मतलब डिपेंड करे सिचुएशन पे, जहाँ पे सिचुएशन जैसी मांगो। आप बोलोगे प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप बोलोगे रूड बनने के लिए वो बन जाएंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे और सामने वाला पर्सन कौन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत अच्छे हो भी बहुत अच्छे हैं, सिंपल सी बात है, राइट? तो फिर 8th क्लास के बाद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल में चले गए थे हम लोग, तो मैं मेरे फ्रेंड थे, उसके बाद फिर साइंस लिया, साइंस के बाद मतलब स्कूल का ठीक था, सब कुछ ठीक था यार। आप हो तो दिल्ली से, लेकिन वाइब आ रही है यूपी वाली। यूपी से हूँ ब्रो, मैं हूँ यूपी से ही अच्छा, एक्चुअली, ठीक है, बट ओके। स्टार्टिंग से मैं दिल्ली रहता से। दिल्ली में ही हूँ। मतलब ऐसा मैंने क्या बोला कि आपको लगा कि मैं यूपी से वाइब आ रही है, ऐसे क्यों? अब बस आप जिस तरीके से बोला ना कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये यूपी के लाइन नहीं, है। ऐसा मैं कभी भी मैंने ऐसा कुछ बहुत फाइट वाइट नहीं करी एंड ऑल। हाँ, फाइट में कभी आगे दोस्त की हो गई, किसी चीज की हो गई, वो चीज है, बट कभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत हरामी था एंड ऑल। मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मेरी फाइट कब हुई, सीरियसली ओके। मुझे याद भी नहीं। अच्छा, बिजनेस पे आने के बाद लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। हमने ऑनलाइन बिजनेस आप पिछले 2-2.5 साल से कर रहे हो, यहाँ पे कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई, किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया आपको? कंट्रोवर्सी नहीं हुई यार, सीरियसली नहीं हुई, कभी कंट्रोवर्सी किसी नहीं हुई। लीड के ऊपर बहुत गुस्सा आया आपको, कभी टीममेट के हाँ, ऊपर, कोई आपका एम्प्लॉय हो? लीड के ऊपर तो एम्प्लॉय नहीं, समटाइम्स होता है ग्राफिक डिजाइनर एडिटर, ठीक है, इन पे कभी कभार होता है कि डेडलाइन हो जाती है तो फिर उन पे
गुस्सा भी नहीं, बस फिर वही है कि समझाना पड़ता है उन लोगों को, यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, आपके लिए वो एक सॉरी है, हमारे लिए पूरा वर्थ है यार, हम 2 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर पे, आपने बोल दिया सॉरी नहीं हो पाया, वो तो भाई हमारा एक दिन छूट गया तो भाई वो जो रिटेंशन डाउन है ना, व्यू यहाँ पे जाएगा, व्यूज का पूरा यहाँ पे जाएगा, और उसको ऊपर करने में हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, सही तो बात वो है, लोग सही बात। इस चीज को, हाँ लीड पे समटाइम ऐसा आ रखा है कि जो लोग प्रिटेंड करते हैं लीड बनने का, एंड दे विल कॉल यू, दे विल गोना वेस्ट योर टाइम। ऐसा हो रखा है 2021 की बात है, एक लाइक कोई हाउसवाइफ थी, उन्होंने कॉल किया था, एंड उन्होंने मुझसे 15 मिनट कॉल पे कंप्लीटली बात किया, उन्होंने पूछा प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीजें पूछी, उन्होंने एक्सप्लेन किया एवरीथिंग, और एकदम आखिरी में क्लोजिंग तक भी हो गई, क्योंकि पेमेंट पेमेंट की बात चल रही थी, उन्होंने कहा मैं करती हूँ भी शाम तक। देन आखिरी में व्हाट्सएप पे बोल रही है, सॉरी सर मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को मैंने बाय कर रखा है, मैं बस देख रही थी स्ट्रैटेजी कैसी होती है, लाइक क्या बोलूं मैंने कहा प्लीज, मैंने कहा आप मुझे ब्लॉक कर दो तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं कुछ बोल लूंगा, रहने दो वहां पे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में लड़कों को तो आप बोल सकते हो यार, एक बार तो मैंने कॉलेज बंदे को बहुत डरा था, बहुत डरा था। ठीक है, इवन समटाइम ऐसा भी हो रखा है कि कोई पर्सन प्रिटेंड कर रहा है लीड बनने का, बट आपने उससे बात किया एंड आपने उसे क्लोज कर दिया, उसने पेमेंट भी कर दिया। ऐसा मेरे से कम मोर देन 8 टाइम्स हो रखा है कि लोगों ने मुझसे सेम प्रोडक्ट बाय किया दोबारा से, और उन्होंने मुझे बहुत बाद में बताया कि भाई हमने आपसे दोबारा बाय कर रखा है। ठीक है, ऐसा भी ओके, हुआ। wow, amazing, amazing. That was एडवांटेज ऑफ गुड wants क्लोजिंग। to work under you, right? राइट 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 राइट। Okay, okay. So, Sid, अभी हम ना 1 सेकंड का 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं because we will gonna do a rapid fire. Okay, so let's start a rapid fire, Sid. Would you like to go ahead with this 1 minute rapid fire? ओके, तो यहाँ पे ना थोड़ा जल्दी जल्दी हमें रिप्लाई करना पड़ेगा, और ये सारे क्वेश्चंस ना हमारी टीम ने रिसर्च करके आपके सोशल मीडिया हैंडल से, आपके कंटेंट से पिक किया है, कमेंट बॉक्स से जो भी लोगों ने पूछा है, राइट? इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर ऑडियंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे वो ये है, व्हिच टूल यू हैव यूज्ड टू बिल्ड योर लैंडिंग पेज? आपने लैंडिंग पेज बनाने की फ्लेक्सी फनल, ऑलराइट, ओके। सो आपके कोई टीम मेंबर है जो बनाता है या फिर आप खुद डिजाइन करते हो? अभी तो यार मैंने खुद ही डिजाइन कर रखा है, Okay, बट खुद ही स्टार्टिंग में क्या आई अप्रिशिएट यार, मैंने ये क्वेश्चन देखने के बाद खुद भी आपका लैंडिंग पेज चेक किया था, इट वाज अमेजिंग यार, डिजाइनिंग वगैरह आपने बहुत बढ़िया किया है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर टीम राइट नाउ? कितने लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं? मैंने आज ही सैलरी पे करी है, तो कितने यार, दो दो चार, मुझे मिला के और मेरे सिस्टर को मिला के 6 लोग हैं। अच्छा, 6 लोग हैं। ऑफलाइन कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? सारे ऑफलाइन काम कर रहे हैं, मैं सिस्टर साथ में इस ऑफिस में काम करते हैं, और चारों के सारे अच्छा, मतलब अपने काम कर रहे हैं। तो सारे लोग आपके ऑफिस में वर्क करते हैं, राइट? नहीं ऑफिस में काम नहीं करते, वो सॉरी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे ऑनलाइन हैं। काम कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, वो लोग दूसरे डिफरेंट स्टेट से हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, राइट? बहुत लोगों ने पूछा है, आपने अपना जो स्टूडियो बनाया हुआ है इसमें आपने ओवरऑल बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? ब्रो ओवरऑल अगर आप सब कुछ बात करो, टेबल लेवल चेयर सब कुछ की बात कर रहे हो आप? या सब सब टेबल चेयर देन आपका हो गया 12, 8, 20, 28, 30, 35 के आप सब मान लो, बिकॉज आपकी जो चेयर होती है वो 4,000 की हो गई, टेबल आपका 8 का हो गया बेसिकली। ठीक है, 8 8 16 हो गए, और जो ये इकोस्टिक फॉर्म इसको बोलते हैं, जो कि साउंड ऑब्जर्वर है, इसमें कम से कम मुझे लगे थे 11,500-12,000 के आसपास। ठीक है, देन 16,000, 12,000, 28 के आसपास आपका बेसिकली हो गया। देन उसके बाद फिर 2,000 कुछ इधर उधर लाइटें वाइटें एंड ऑल सारी चीजें। और अगर आप बात करो लाइट की 35-40 के आसपास मान लो, बट इन स्टार्टिंग यार आपको बहुत ही लग्जूरियस नहीं चाहिए होता है। आपके पास एक नॉर्मल रूम है, चेयर है, टेबल है। मैं लिटरली बोलूं 1.5 साल तक मैंने छत पे चल के कॉल करी है, जब मैं सेल्स कोर्स करता था। मेरी छत भी बहुत बड़ी नहीं थी, हाँ 25 वर्ष का घर है मेरा। ठीक है, वो मुझे पता है कि मेरी कॉपी और पेन देते थे, मुझे बस अपना मैं बोलता था वैसे बेसिकली, मुझे फोन दे दो, कॉपी एंड पेन दे दो, बेसिकली आई कैन मेक लाख ऑफ रुपीज बाय डूइंग कॉल्स। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ कॉपी रखना, पेन रखना, अपना सिर्फ प्रोसेस से बात करना प्रॉपर्ली, और वॉक करते करते, कच्चे पहन रखे, बंडी पहन रखी है, उससे वॉक कर रहा है, वॉशिंग मशीन के ऊपर होती है। सो इवनिंग में मैं जाता 5 बजे की 5 के आसपास जाता मैं छत पे अपने। ठीक है, रात में आता 8 बजे, मैं सिर्फ 3 घंटे कॉल्स, ओनली 3 आवर कॉल्स, उसके बाद फिर सिर्फ काम करना सीरियसली मार्केटिंग। हाँ व्हेन आई वाज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, तो 5 to 8 का मेरा टाइम रहता था। उसके बाद लीड का रिप्लाई करना था, वो इवनिंग में अपना आराम से 8 9 10 के आसपास हो जाता था, 3 घंटे कॉल्स एंड देन बूम। स्टार्टिंग में आपके पास इट्स कंप्लीटली फाइन। आज सॉरी इवन आज भी मैं मुझे यही रिकमेंड, मतलब प्रेफरेबल रहता है कि यार मैं छत पे जाके आराम से वॉक करते हुए बात करूं, या कि ये सेटअप पे बैठ के मुझे बात करना आज भी कंफर्टेबल नहीं रहता, राइट? मेरी भी आदत पड़ चुकी है टहलते हुए बात करते हैं, मैं भले वहां पे टहलूं बट अपने ऑफिस में फिर मूव करते हुए। अभी तो मैं कॉल्स नहीं करता, तो टीम कॉल करती है, तो जब मैं करता था तो मैं तो फिर यहीं बैठ कर आराम से करता था।
ओके मैं तो नॉर्मल कॉल्स भी करता हूँ, जैसे हमारी बात हुई थी राइट, तो वो भी मैं वॉक करते हुए करता हूँ, मेरी आदत से हो गई है। ओके 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 सुपर। या सो आई थिंक मैंने बहुत लोगों से ये देखा है जो भी मार्केटर्स हैं, कुछ लोगों ने बात भी किया, ज्यादातर लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं भी वॉक करके बात करना प्रेफर करता हूँ। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी? आपका मेजर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी? मेरे 10,000 की एसआईपी जाती है, ठीक है, हर मंथ की ग्रो में। और बस यही है, अभी स्टॉक्स में कोई इतना मैं एक्टिवली नहीं हूँ, आईपीओ आते हैं तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। वही 2 आईपी में कर रखे हैं, दोनों में जो सबसे खराब जा रहे हैं ना, आप मान लो, उस पर मैंने कर रखे हैं। ठीक है, पॉलिसी ओके बाजार में और क्या नाम है, एक और कोई सा है, मतलब दोनों खराब ही जा रहे हैं और काफी माइनस में है। और स्टॉक मतलब किसमें कर रखे, क्रिप्टो में कर रखे कुछ, वो भी आपका माइनस में ही है। मतलब कि मैं इतना कोई हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मेरा सिंपल है कि अपने स्किल्स के ऊपर, अभी रहता हूँ क्या, स्किल्स के ऊपर कंप्लीट अपने इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। और अभी जो मोस्ट होता है पैसा जा रहा है, जो इन्वेस्ट हो रहा है, वो जा रहा है सॉफ्टवेयर में, ईमेल मार्केटिंग में, लाइक आपका Vimeo में, Wistia में, लाइक बड़ी से सॉफ्टवेयर लैंडिंग पे सॉफ्टवेयर आपका हो गया, Zapier हो गया। अभी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में काफी पैसा जा रहा है और टीम के ऊपर जा रहा है बस। अच्छा वैसे एक क्वेश्चन है भी, आप बिजनेस में, टूल्स में, बिजनेस के ऑपरेशन में राइट कितना इन्वेस्टमेंट करते हो एवरी मंथ? ब्रो लाइक देखो, कुछ तो जैसे आज ही इस मंथ हमारा कितना हुआ है सॉफ्टवेयर में के आसपास, 20,000 के आसपास हुआ है सॉफ्टवेयर में हमारा। Vimeo लिया हमने, 1 साल का बाय कर रखा था, तो मैंने हमने इसी मंथ बाय किया, तो 8,000 के आसपास वो पड़ा हमें, हमने एक शीट ली उसकी। और ईमेल मार्केटिंग का हमने लिया बड़ी से, तो वो हमें 6,000 के आसपास का पड़ा। उसके अलावा कैलिजर एक कॉलिंग के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा जूम का हमारा चलता चलता रहता है, पर मंथ का रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक दो सॉफ्टवेयर और है, तो वो 20-25 के आसपास हमारा इस मंथ का पर्टिकुलर पड़ा सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, फिर डिपेंड वैरी करता है कि अगर आपने किस मंथ में क्या पता, हर मंथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, मैंने ये देखा है। हमें लगता है ना कि यार इस मंथ तो मैंने ये बाय कर लिया इसलिए ज्यादा एक्सपेंस है, बट ना कुछ हाँ ऐसा होता है कि ना यार इस मंथ ना ये 40,000 का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने फोन ले लिया। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि 40,000 का एक्सपेंस अगले मंथ भी होगा। अगर फोन नहीं होगा तो वो कुछ और होगा, वो सॉफ्टवेयर हो गया, किसी का बर्थडे होगा, कुछ ना कुछ और होगा, तो वो एक्सपेंस तो होता ही रहता है यार वहां पे। और अभी तो सॉफ्टवेयर यार जा आई रहा है यार एग्री most of विद the- यू। मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, बहुत सारी चीजें मेरे में और आप में सिमिलर है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यंग एज, हम दोनों ही सेम एज के ग्रुप में हैं, शायद थोड़ा बहुत एज ओके मैच करती है, तो ओके माइंडसेट थोड़ा सेम। हमें ऐसा लगता है कि यार एक्सपेंस नहीं होने वाला है राइट। मैं भी यही सोचा, मैंने लास्ट मंथ फोन लिया था अपना, ठीक है, 30 के अराउंड। मैं इस मंथ नहीं खर्चा करेंगे, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस था लास्ट मंथ का, लेकिन इस मंथ मैंने पूरा अपना ऑफिस सेटल किया, तो इसमें लग गया आराम से 20-30। ये हर महीने, और नेक्स्ट मंथ का ये प्लान है कि ये करना है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि नहीं यार नेक्स्ट मंथ ऐसा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली वो निकल ही आता है इतना एक्सपेंस, तो मे बी बिकॉज ऑफ यंग एज, या फिर आज एक्सपेंसेस इतने आता है। एग्जैक्टली इवन जब आप वही है ना कि जब आप नहीं कमाते हो यार, तक एक्सपेंसेस जीरो होते हैं, बट जब आप कमाना चालू करते हो तो फिर एक्सपेंसेस काफी हो जाते हैं। ट्रू ट्रू, वो आपका इनकम के साथ साथ बढ़ता रहता है। जैसे जब मैं 10,000 रन कर रहा था 2019 में राइट, तो उतना उसके हिसाब से खर्चा होता था, बट अभी जैसे आपका धीरे धीरे इनकम बढ़ता है तो एक्सपेंसेस भी उस तरह हो जाते हैं राइट। अच्छा एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, और आई थिंक मैं पर्सनली भी ये पूछना चाहूंगा, तो मेरा भी क्वेश्चन है एंड बहुत सारे और भी लोगों का क्वेश्चन है, इफ यू कंफर्टेबल शेयरिंग दैट, हाउ मच मनी डू यू मेक मंथली? कितना कितना इनकम हो जाता है आपका मंथली राइट नाउ अभी के टाइम? ब्रो देखो, डिपेंड करता है। लास्ट 2 मंथ इतने अच्छे नहीं थे, मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर मैं बोलूं कि जो हमारा ये वाला मंथ था नवंबर गया, इट वाज इन लॉस, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट। लास्ट मंथ वाला भी कहीं ना कहीं हमारा लॉस में ही था, ठीक है। बट उससे पहले कोई मंथ ऐसा नहीं जो प्रॉफिटेबल ना हो। अगर मैं एवरेज की बात करूं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इस साल के, तो यू कैन से 2 लाख, यू कैन से एवरेज। हमारा ये है एवरेज है, किसी मंथ हाई होता है, किसी मंथ लो होता है, किसी मंथ काफी लो होता है, डिपेंड करता है वेबिनार्स पे, डिपेंड करता है कॉल्स पे, डिपेंड करता है सेल्स आपने इसके लिए कितनी कर रखी है, ठीक है। और अभी क्या है कि अगर आप मतलब जैसे फॉलो कर रहे हो, अगर आप जानते हो दूसरे को, अगर आपने कभी नोटिस कर रखा है, मैंने जितने वेबिनार कर रखे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो हर एक वेबिनार टेस्ट वेबिनार थे। किसी में प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में वेबिनार का जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट है वो फ्री है, किसी में 9 रुपीज है, किसी में 29 रुपीज है, किसी में 99 रुपीज है, किसी में 499 है। हर एक वेबिनार, हर एक मंथ मैंने एक वेबिनार किया, सबका मॉडल अलग था। मैंने हाई टिकट सेल किया, मैंने लो टिकट सेल किया, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट मैंने वेबिनार में सेल किया। मुझे पता था फेलियर रहने वाला है, ठीक है, मैंने फिर भी किया, टेस्ट एंड ट्राई की चीजें कैसे काम कर रही है यहाँ पे। मैंने फ्लेक्सी को भी प्रमोट किया वेबिनार के थ्रू, ठीक है, मैंने उसको भी एफिलिएट किया, वहां से भी जनरेट किया। इवन 27-29,000 का प्रोडक्ट था बेसिकली, मैंने वो भी किया। तो हर एक वेबिनार मेरा टेस्ट एंड ट्राई था। एंड टेस्ट एंड ट्राई में अगर आप प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो बेसिकली, तो दिक्कत क्या है। लास्ट 2 मंथ अभी हमारे इतने बेहतर नहीं गए इस वजह से, बिकॉज अभी हमने ऑर्गेनिक काम करके इनऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर रहे हैं।
है। तो इनऑर्गेनिक पे आपको सिस्टम बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अभी जो इंटर्न्स हमको प्रॉपर्ली ट्रेन कर रखा है, इसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। प्लस में अभी एड्स के लिए बंदा हायर कर रखा है, अभी वो सारी चीजें चलने वाली है। बट अगर मैं नॉर्मली बताऊं अर्निंग के बारे में, तो यू कैन से इट्स 1.5-2 लाख आपका ये एवरेज चल रहा है राइट नाउ अभी। और ये हाँ रिवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रिवेन्यू है। अगर लोग सोचे पता चले कोई देख रहा हो प्रॉफिट है, ये रिवेन्यू है। एक्सपेंस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना, ये सॉफ्टवेयर होता है, खुद के लिए क्या नाम है सैलरी पे करनी होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, पैसे बहुत जाते हैं बिजनेस के अंदर में, प्रॉफिट काफी कम बचता है। मैं लिटरली बोलूं ब्रो, व्हेन आई वाज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, इट वाज लाइक अमेजिंग सीरियसली, बिकॉज इट वाज लाइक कंप्लीट प्रॉफिट। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं 1.5 कमा रहा हूँ, 2, वो मेरा कंप्लीट प्रॉफिट है। मेरा एक्सपेंस कितना होगा यार, 5-6 हजार रुपए, फैमिली को दे देंगे 20,000 रुपए। उसके बाद मेरा देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज सेविंग 1 लाख रुपीस एवरी मंथ। व्हेन आई वाज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, आई वाज सेविंग 1 लाख रुपीस एवरी मंथ। मैं ट्रांसफर करता था सेविंग अकाउंट में, टक 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 टक। बट जब आप खुद के कुछ करते हो, चाहे आपका कोचिंग बिजनेस है, चाहे आप फ्रीलांस, चाहे अपनी एजेंसी रन कर रहे हो, तो भाई फिर आपको थोड़ा सा लॉस बोरो करना पड़ता है स्टार्टिंग में। ग्रेजुअली फिर आप उसको हल्का फुल्का टैकल करते हो, फिर आप उसको फिर ब्रेक इवन पे आओगे, उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड करोगे, चलता रहेगा ऐसे। सेम ईयर इवन आई एग्री विद यू। तो जब मैं थोड़ा सा किसी और पर्सन भी वर्क कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, राइट, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर कोई भी ऐसा भी वर्क कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमीशंस, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी पूरी की पूरी अपना होता है, राइट। से अपने पास सेल्स का स्किल्स बहुत अच्छा है, राइट। तो इफ यू आर वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कोई भी एफिलिएट कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट पूरा अपना होता है। बट जब मैं भी कोचिंग में आया था यार, बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत लॉसेस, पहले 2 महीने तो मेरे भी लॉस में गए थे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ना पेड एड्स यार इतनी ज्यादा हाई एड कॉस्ट आ रही थी। उसके बाद फिर लोग आ रहे हैं, देन फिर हमें लगता था, जब हम प्लान करते हैं ना कि यार वी आर कमिंग टू कोचिंग बिजनेस, या एवरीथिंग विल गोना बी अमेजिंग, फर्स्ट मंथ इतने क्या रन करेंगे, देन इतना प्रॉफिट, इसमें से इतना सेव, फिर इतना रीइन्वेस्ट। वो लगता है कि हाँ, किसी ने बोल दिया 25 रुपए की लीड पड़ेगी, इतने लीड्स आएंगी, इतने में निकाल लेंगे, 5 लाख रिटर्न आ गया, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब बात में अच्छा लगता है वो, प्रैक्टिकली अलग ही होता है भाई सी। और उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो पता लग रहा है यार लैंडिंग पेज का भी एक्सपेंस है, यार टीम को भी देना है, और यार सेल्स में भी दिक्कत आ रही है, एड कॉस्ट हाई चली आ रही है, फेसबुक ने बैन कर दिया, फिर से बनाओ अकाउंट्स, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत यार मेरे ख्याल से फेसबुक एड्स ही करता है, मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली देन इसीलिए ना कि यार मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी, कि इफ यू वांट टू लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट, मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट बिल्ड योर ऑडियंस, देन प्रमोट योर प्रोडक्ट, देन लॉन्च योर ओन प्रोडक्ट। लिटरली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, डोंट व्हाट इज से लाइक लॉन्च योर प्रोडक्ट फर्स्ट देन बिल्ड योर ऑडियंस। ये गलती मत करो यार। अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अगर आप लोग, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यार आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना 1 साल में बहुत ही नेक्स्ट लेवल कर सकते हो अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म में काम करोगे तो, ठीक है। तो उसको पकड़ो पकड़ो अपना आराम से, देन यू कैन मोनेटाइज लाइक एनीथिंग यार। आपका प्रोडक्ट का प्राइस 5,000 के आसपास है, आपने 2,000 सीरीज भी कर दी। आई नो पीपल इन माई कम्युनिटी नोन जिन्होंने सिर्फ एक लॉन्च से 2 दिन के अंदर 40 लाख कमा लिए, 50 लाख कमा लिए, ठीक है। दे आर डूइंग, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑडियंस थी। और वो लोग और इनऑर्गेनिक काम नहीं करते, ऑर्गेनिक काम करते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग उनकी बहुत बेस्ट है। इवन ऑर्गेनिक अभी तक आज तक जितने मैंने अभी जो अमाउंट जनरेट कर रखा है, 40-45 के डॉलर इन माई लाइक 2 ईयर जर्नी, वो मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिक है। कोई पेड एड नहीं है वहाँ पे, कोई एड नहीं बेसिकली वहाँ पे। मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिक थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब एंड ऑल सारी चीजें वो था। ओके, बट राइट नाउ अभी एड्स कर रहे हैं, अभी वो डिफरेंट वो तो स्केल करना तो फिर एड्स आपको करना पड़ेगा। Because we can reach to a larger group of people. इवन जो लोग एड्स भी रन कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं ना, वेबिनार्स कर रहे हैं, देन वो लीड्स को भूल जा रहे हैं, बट दैट्स अ ब्लंडर। जो आपकी ऑडियंस है वो कैसा काम, उनको भी आप वैल्यू देते रहो। ऑडियंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक देम सब्सक्राइब योर मल्टीपल चैनल, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें आप सब्सक्राइब कराओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप बाद में कुछ ना कुछ सेल कर सकते हो, आगे चल कोई आपका नया प्रोडक्ट आएगा, तो नहीं कि आप एक ही चीज सेल करते रहोगे, राइट। सो आई एग्री विद क्या भाई, ऑडियंस रहती है तो सेल करना बहुत आसान है। जैसे अभी आपने सौरभ सर का देखा होगा, सौरभ भटनागर जी का वो आया था फ्लेक्सी फनल, पूरा ऑर्गेनिक, उन्होंने ऑर्गेनिक में कम से कम करोड़ों के रेवेन्यू जनरेट किया, 4 करोड़ के आसपास। यस 4 करोड़ के आसपास। तो पहले ऐसी ऑडियंस है, ईमेल लिस्ट उनके साथ 1.5 लाख लोग हैं, या उससे भी ज्यादा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ऐसी बात है। अच्छा वैसे आप, हाँ ट्रू, वैसे आपने राहुल सर, सौरभ और बहुत सारे लोगों से मिले हैं फिजिकली, राइट। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ? एक्सपीरियंस भाई, दे आर वेरी हम्बल पीपल, राइट, है ना। मतलब कि डाउन टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ, कॉल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, राइट। मतलब कि दे आर वेरी हम्बल पीपल, मतलब कि बहुत ही ऐसा लगेगा कि बड़े भाई हैं आपके, ठीक है। मैं जितनी बार ही मिल रखा हूँ, तो मैं अकेले ही मिल रखा हूँ, मैं उनसे काफी बार बहुत देर तक मिले हैं, 5-5 घंटे 6 घंटे बैठ के बात कर रखी है हम लोगों ने, ठीक है। तो वेरी हम्बल पीपल, अगर बताते हैं स्ट्रैटेजी है, कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है यार, लाइक बहुत ही अच्छा था। अभी रिसेंटली हम मिले थे, दिल्ली में सर आए थे, तो मैंने उनको टेक्स्ट किया तुरंत ही। मैंने कहा सर इस बार तो ले दूंगा मैं,
मुझे याद है कि मैं कहीं बीकानेर में था, मैं खड़ा हुआ था, मैंने सर को ऑडियो सेंड किया, तो फिर सर का बस वहां से ऑडियो होता है, अरे यार यार तू तो मेरा सुपरस्टार है, तो एक काम कर, तू रहता कहाँ है, तू ये बता, अभी यहाँ पे शादी है किसी की, तो कल मिल लेते हैं। मैंने कहा सुबह, मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, तो फिर कह रहे कि एक काम कर, तू वहाँ पे आ जा, फिर 2 लोग और आने वाले थे, मैंने दोस्तों को उठा के ले गया, मैंने कहा तू चले काम कर, ठीक है। तो फिर हम लोग चले गए फिर मिलने के लिए, फिर सौरभ सर थे, राहुल सर भी थे, फिर वही सिंपल है। तो एक चीज है हमेशा इधर को यार कि आपको ना कभी भी किसी से मिलने के लिए जाओ ना, तो वहां पे ना कुछ बातें नोटिस कर लो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको ना वो याद रह जाए। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, देन मैं कुछ ऐसी बातें यहाँ पे डेफिनेटली बोलूंगा जो कि आपको ना वो याद रहेंगी। मैं चाहे कुछ आपके लिए आइडिया लेकर आऊँ, चाहे सपोज करो कि आपको कोई लैंडिंग पेज है, कोई दिक्कत है, मैं बोलूंगा कि आपके ना यहाँ पे दिक्कत है, ये चीज इशू है बेसिकली आपका, ठीक है, ये चीज है। तो वहां पे फिर एक आइडिया से मेरे माइंड में फॉर सौरभ सर, सॉरी राहुल सर, मैंने यहाँ पे उनको आइडिया दिया, मैंने कहा सर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने बोला कि यार तू मानेगा नहीं सेट, आज हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर उसके फिर वो जो कॉन्वर्सेशन था वो और इन डेप्थ में गया, वो और इन डेप्थ में गया, वो और इन डेप्थ में गया कि हाँ अरे यार तो चले, ये प्लान बढ़िया है, इसको नेक्स्ट ईयर एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो वो 30 मिनट कॉन्वर्सेशन थी ना, वो डेफिनेटली सबको याद रहेगी, और वो याद रहेगा सिर्फ कौन था। 100%, बिकॉज दोनों को वैल्यू मिली। हाँ राइट राइट राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे वैल्यू मिली उस कॉन्वर्सेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। सो सेट एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिले सो आप पहले कार बाय करोगे या फिर घर बाय करोगे? अभी आपका क्या प्लान है? ब्रो लाइक कार बाय करेंगे घर बाय करेंगे, डिपेंड करता है यार कि बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं यार। एज क्या है पहली चीज तो ये, अगर मौका मिलेगा मतलब क्या, पैसे मिल गए डायरेक्टली, अगर सिचुएशन क्या है कि मेरे पास पैसे है, मैं उतना कमा रहा हूँ, मैं नहीं कर बाय करने वाला, नहीं करना ही नहीं, नहीं कार, नहीं कहना बड़ी से लाइक घर बड़ा सही बिल्कुल है भी नहीं। कि हाँ अभी आपके पास एक अच्छा कैपिटल है राइट नाउ, राइट, और आगे चल के फॉर श्योर बढ़ने वाला है बिकॉज़ यू आर वर्किंग, यू आर कंसिस्टेंट, राइट? तो नहीं है आगे भाई चल के आपका कैपिटल, क्या? मेरी अभी कोई कैपिटल नहीं है भाई। ओके, चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं। फ्यूचर में आपके पास और पैसे आएंगे, भगवान करे, राइट, आपका बैंक में और नो डाउट यार, पहले घर ही फैमिली के लिए। हाँ मैंने एक आइडियोलॉजी बता रहा था बेसिकली स्टार्टिंग में आपको, कि ऑडियंस को, ठीक है, कि वो ये था कि आइडियोलॉजी की स्टार्टिंग में जो हम अर्न करते हैं ना पैसा, और बोलते हैं ना कि आपका वाई क्या है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपका वाई क्या होता है, पैसा। मैं तो बोलूंगा पैसा वाई है, सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में वाई पैसा है, जब पैसा होता है ना, आप अर्न करते हो, आप खुद स्टेबल होते हो, आप फैमिली के लिए थोड़ी बहुत अच्छी अर्निंग करते हो, तो फिर एक लेवल आता है जहां पे आपको पता है कि हाँ यार, नाउ आई कैन मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी कंसिस्टेंटली, और कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को मैं बैक एंड सपोर्ट आराम से दे सकता हूँ। नाउ आई कैन डू समथिंग एल्स, नाउ आई कैन ट्राई समथिंग एल्स, बिकॉज जो इस फेज पे है, मैं इस फेज पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, और इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ कि मेरा ये बिजनेस मॉडल काम करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, बिकॉज थोड़ा बैक एंड मेरे पास रखा हुआ है। मुझे पता है कि अगर मैं 1 साल नहीं कमाऊंगा ना, मेरी फैमिली इसमें कंप्लीटली ओके, कोई वाली बात नहीं, उतना अमाउंट रखा हुआ है प्रॉपर वहां पे। तो वो चीज है, तो फिर यहाँ पे ना, नाउ यू वांट टू बिल्ड समथिंग, नाउ यू वांट टू बिल्ड समथिंग। स्टार्टिंग में हर कोई बंदा जो काम कर रहा है इसके लिए पैसे के लिए कर रहा है, बट धीरे 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 आप उस लेवल पे आते हो जहां पे वो कंसिस्टेंटली अर्न करते हो, या फिर अपनी फैमिली के लिए बैक एंड सपोर्ट कर लेते हो, बैक एंड रख लेते हो, उसके बाद नाउ यू वांट टू बिल्ड समथिंग। ये मेरी आइडियोलॉजी है और मैं इसी पे गेम प्ले करता हूँ कंप्लीटली, ठीक है। तो अभी मैं क्या हूँ, इस लेवल पे आ चुका हूँ, अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं उसको धीरे 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 बिल्ड करने के लिए, सिंपल है। और राइट नाउ ब्रो कार और इसका घर वर का तो नहीं, बट हाँ अगर आप मुझे इन दोनों में ऑप्शन ले रहे हो, तो डेफिनेटली घर एक बहुत बढ़िया घर फैमिली के लिए। या मुझे भी लगा था कि आपका कुछ ऐसा ही जवाब, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स बस मुझे ऐसा लगा यार, क्योंकि बिकॉज यू फॉलो सम पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, राज शर्मानी एंड लॉट मोर पीपल, राइट? सो ऑब्वियसली वो हमारे मन में आ जाता है, और इवन मेरा भी यही मूड है कि यार अगर पहले हम बाई करेंगे तो शायद घर ही बाई करेंगे, गाड़ी बात, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मुझे नीड है उस चीज की। कार की तो नीड अभी तो है ही नहीं यार, अभी कौन सा ऑफिस है मेरे घर से बहुत पास में ही है, ठीक है। कार की नीड तो बेसिकली भी है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और घर घर भी वो लोग बोलते हैं रेंट करने के लिए, बट व्हाट आई बिलीव, घर एक आपका इमोशनल फैक्टर है। अगर आप अकेले रह रहे हो देन रेंटिंग इज गुड, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो देन यू शुड बाय अ हाउस। आपको बेसिकली अपने लिए चाहिए आपको घर। भाई घर महंगे आते हैं भाई, 15-20 लाख से घर नहीं आते, यू नीड एटलीस्ट 1 करोड़ 1.5 CR, आपको वो अमाउंट चाहिए, और अभी तो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं यार, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा भी। टाइम है, बिल्कुल टाइम है, राइट? तो यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, हैव दैट माइंडसेट कि यार पहले ये करते हैं ये करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई आस्क फॉर योर रिकमेंडेशन, व्हाट यू सजेस्ट टू पीपल व्हाट दे शुड डू। आपके हिसाब से अगर आपको रिकमेंडेशन देना, राइट, कि पीपल शुड गो फॉर कार और हाउस, अगर आपको दो में से इन्वेस्ट इन, इफ यू आर इन 20s फॉरगेट अबाउट कार एंड ऑल सारी चीजें भाई, एटलीस्ट स्टेबल इनकम हो आपके पास एक अच्छी खासी, एंड इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपके लिए अच्छी खासी इनकम क्या है। कुड बी 1 लाख, कुड बी 2 लाख, कुड बी 5 लाख, कुड बी 10 लाख, कुड बी मोर देन दैट। आपके लिए अच्छी खासी बेसिकली इनकम क्या हो सकती है, तो पहले उसको बिल्ड कर लो अपना आराम से। फिर उसके बाद उसके उससे आपके पास जो एसेट्स हो,
जैसे मेरी एक आइडियोलॉजी बेसिकली यहाँ पर रहती है कि अगर मेरा फैमिली एक्सपेंस बढ़ते हैं, मेरे एक्सपेंस बढ़ते हैं, मैं उसे कम नहीं करता कभी भी, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अगर मेरा 30,000 का एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है इस मंथ में, देन हाउ कैन आई मेक 30 के एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं ये देखता हूँ इसलिए, और ठीक है कोई वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे ये 4 से 5 प्रोडक्ट बेसिकली और भी सेल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है। तो स्टार्टिंग में भाई मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ यहाँ पे कि जिसने मल्टीपल स्टॉक में कर रखे हैं इन्वेस्ट। मैं कंप्लीटली आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे भाई कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, सिंपल। अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, वर्कशॉप में जाओ, लाइक मास्टर क्लास में जाओ, बहुत सारे मास्टर क्लास होता है, इवन मैंने कितने सारे मास्टर क्लास मिस कर दिए। अभी योर स्टोरी का इवेंट हुआ था, उसमें कुछ 4 से 20,000 के आसपास का, मैंने वो मिस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, वहां पर जाओ, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, एक्सपीरियंस लो, कोर्सेज बाय करो, अपने उस पर इन्वेस्ट करो। आपका स्टार्टिंग बेसिकली यहाँ पर ही वही है। फिर हाँ, पैरेलल में और एक्सपीरियंस में भी इन्वेस्ट करो। तो एक्सपीरियंस का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फिर आप सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज भी आपको पैरेलल में करनी चाहिए अपनी। ट्रू ट्रू, परफेक्ट परफेक्ट। थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन की बात करें, इफ यू कंफर्टेबल। श्योर मैन, गो ऑन। होप से भी ज्यादा पर्सनल लाओ। ओके, सो अभी आप लाइक कोर्सेज में क्या कर रहे हो? जैसे एक क्वेश्चन मैंने पिक किया था आपके कमेंट से, और मैं भी पूछना चाहूंगा कि पर्सनली अभी आप क्या कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक्स में। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ब्रो, राइट नाउ मैं भी 3rd ईयर के अंदर हूँ, ठीक है। और अभी बीएससी कर रहा हूँ मैं, ओके, फ्रॉम इग्नू। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, इग्नू है, मैथ साइंस केमिस्ट्री, लाइक ये ले लिया मैंने यार, केमिस्ट्री। आई डोंट नो व्हाई कि मैंने क्यों ले लिया ये। और मैं तो लास्ट ईयर में 2 बार एग्जाम देना भूल गया। मेरे एग्जाम के जो भी सब मतलब जो एग्जाम डेट है एंड ऑल, मेरा दोस्त फील करता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे पेमेंट करके, कि ये तूने पेमेंट कर रखे है तो पेमेंट सेंड कर दूंगा। अब रिसेंटली मुझे उसने मेरे क्या नाम है एग्जाम दोबारा भरे, उसने लास्ट टाइम भरे थे, मैं वो दे ही नहीं पाया वहाँ पे, वो एग्जाम फीस बर्बाद गई। दिसंबर के उसने एग्जाम दे रखे हैं, भाई एटलीस्ट इसको दे दियो एग्जाम को, तो फिर वो देने भी अपना राइट ना, ठीक है। तो ये मेरा 3rd के एग्जाम है मेरे, ये राइट। मेरा भी और सेम है, बीएससी मैथ्स। बीएससी मैथ्स है, ओके, सुपर मैन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बट वही है, तो मैं तो जो रिजल्ट मेरे आ रखे सेकंड ईयर के, मैं बता सकता भी नहीं यहाँ पे, मेरी बेइज्जती काफी ज्यादा हो जाएगी। लाइक ठीक ही रहते तो उस चीज को। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं कवर करते हैं। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट भी इस चीज में है। गर्लफ्रेंड्स है कि नहीं? एज ऑफ नाउ ब्रो आई एम सिंगल, राइट। एज सिंगल। ऑफ नाउ आई एम सिंगल, हाँ, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है उस चीज के लिए। ये ऐसा एक्सक्यूज आप सुनोगे लोगों के मुंह से, ठीक है, बट अभी क्या है ना कि सी अभी ऑनेस्टली ब्रो, ऑनेस्टली आई एम सिंगल राइट नाउ, ठीक है। बट एक समटाइम्स ऐसा फील होता है, यही सी बात है, कि देयर शुड बी समवन विद whom यू कैन शेयर योर लॉसेस, विंस, स्टोरीज एंड ऑल, ऐसा फील आता है। बट कोई पर्सन ऐसा मिलता ही नहीं जिससे वाइब टच हो, जिससे वाइब मैच हो। अगर मिला कोई पर्सन, मैं बोरिंग लगूंगा उसको, अगर वो ऐसा कोई पर्सन मिला तो वो मुझे बोरिंग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वो लेवल मैच ही नहीं हो पाता कभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग आए नहीं लाइफ के अंदर में, लोग आए गए, ठीक है, बट फिर वो इंटरेस्ट ही मैच नहीं हो पाया प्रॉपरली, देन छोड़ो, क्या दिक्कत है फिर उसमें। ऑडियंस समझ रहे हो, लोग आए गए, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या मतलब है। आई होप ये पॉडकास्ट आपकी मम्मी भी देख रही है, राइट, कि आपको नीड है किसी चीज, मम्मा कभी नहीं देखेंगे। ओके, कोई बात नहीं। आपकी सिस्टर दिखा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी सिस्टर का नाम नेहा उपाध्याय है एंड पूजा, राइट? राइट 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 राइट। परफेक्ट परफेक्ट। सो अच्छा, मैंने ना आपकी बिकॉज टीम ने भी पूरा प्रोफाइल चेक किया और मैं तो काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ। सो मैंने ज्यादातर आपकी प्रोफाइल पे आपके बातों में मदर को ज्यादा ही सुना है, फादर को बहुत कम सुना है। सो वो आपके साथ रहते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली लाइक आई लॉस्ट माय फादर 5 years बैक, ही पास्ड अवे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। सो मेरे ख्याल से आई वाज 11th क्लास, उस टाइम पे मैं 11th क्लास में था। ओके, तो तो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है अभी? हाँ, यू कैन से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द गुड पार्ट इज कि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है, तो वहां पे पेंशन आती रहती थी, ठीक है। तो एक और वही फैक्टर, गवर्नमेंट जॉब, ऑलराइट, ठीक है। तो नहीं, बट स्टार्टिंग का 1 साल काफी हार्ड था, और फिर सिस्टर ने जॉब करना स्टार्ट, मतलब कि वो टाइम इतना हार्ड सही नहीं था, वो टाइम इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। और फिर मतलब था, टाइम चला गया, और 1 साल तक कोई पेंशन बनी नहीं थी, तो काफी हार्ड था, जो सेविंग्स थी उससे चल रहा था। उसके बाद फिर कुछ हुआ, देन जब मैंने कमाना चालू किया, उसके बाद फिर चीजें थोड़ी सी स्टेबल होना चालू हो गई फिर, राइट। तो आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है या आपसे छोटी है? हाँ, मुझसे बड़ी है वो, मुझसे काफी बड़ी है, मुझसे मेरे ख्याल से 4 साल, 3-4 साल बड़ी है मेरे ख्याल से वो मुझसे। अच्छा, वो नेहा है, हाँ राइट? एग्जैक्टली, हदी मुझसे 3-4 साल बड़ी है मेरे से, राइट। ओके, तो आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 5 हैं। ओके, 4 बहन, हाँ 3 बहन के बाद मैं हूँ, देन मेरी छोटी वाली सिस्टर पूजा है।
अच्छा, मतलब आप 4th नंबर पे हो, राइट? मैं 4th नंबर पे हूँ, राइट 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 राइट। ओके, अब मुझे लगता था कि आप सबसे बड़े हो बाकियों में। नहीं 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 नहीं, काश काश ऐसा होता, ठीक है, बट काश कैसे भी क्या ही है, राइट। कि सबसे बड़ा नहीं हूँ मैं, 4थे नंबर पे हूँ। एक सिस्टर की मेरी शादी हो रखी है, उसके बाद नेहा दी है, देन एक शिवांगी दी है, देन मैं हूँ, देन मेरी छोटी सिस्टर पूछा। सो हाउ वुड यू लाइक टू गेट मैरिड? अरेंज, लव, कैसा? आपका क्या प्रेफरेंस? डिपेंड करता है कि पर्सन कहाँ बेटर मिल जाए। ओके, हाँ, मतलब राइट। चांसेस उधर भी। हाँ नहीं, अगेन से बोला तो डिपेंड करता है कि फिर मदर, माँ बहुत मैटर करती है लाइफ में, डिसीजन मेकर, ठीक है। कि और आई नो सम आई कैन कन्विंस हर, ठीक है, बट फिर वही वही चीज है ना कि देखो शादी वादी समथिंग इज भाई बहुत ही लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मतलब यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर होल लाइफ विद समवन, देन हाउ कैन यू से कि हाँ लव होगा अरेंज होगा? अरे आपको पहले बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 5 to 6 मंथ आपको रहना पड़ेगा साथ में, देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके जो पर्सपेक्टिव हैं कैसे हैं, ठीक है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपकी क्या आइडियोलॉजी इस चीज को लेकर हुए, आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, ठीक है, आप कैसा क्या बेसिकली। मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा पर्सन हो जो कि साथ में मेरे साथ काम करे, ठीक है, हम कुछ बिल्ड कर रहे हो साथ में और फिर वही सब हो जाए। ठीक है, ओके, मैं तो ये चाहता हूँ। बट हाँ एग्जैक्टली कि काम काम में हो अपना आराम से, लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर, वी आर बिल्डिंग टुगेदर, तो काम में बहुत सही रहता है। बट लेट्स सी कहाँ जाते हैं डायरेक्शन यार। ट्रू ट्रू। सो आपकी मॉम आपको बिजनेस के लिए सपोर्ट करती है, और वो, या फिर वो आपको जॉब के लिए बोलती है, गवर्नमेंट जॉब्स में आप एंटर करो? सी पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पैसे कमाओ सही तरीके से, आप स्टेबल हो जाओ, और ये मेरे पेरेंट्स नहीं, 90% पेरेंट्स चाहते हैं। दे विल ट्रू। गोना से यू कि आपको करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब इज गुड, सिंपल। उनको उसके अलावा नहीं पता। अगर समहाउ आपने उनको ये रियलाइज करवा दे कि वट एवर यू आर डूइंग इज बेटर देन गवर्नमेंट जॉब, योर पेरेंट्स वॉन्ट गोना से यू अगेन कि आपको इस चीज करना चाहिए। उनको नहीं पता, उनको पता है प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब, एंड दोनों गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन प्राइवेट जॉब, एंड दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग यू कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। बट समहाउ अगर आपने उन्हें कन्विंस कर दिया, आप उनको सिंपल बता दो कि आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, और ये राइट तरीके से बेसिकली है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। दिलों से ठीक है, जो कर रहा है करो, बट गलत काम मत करना। आपके पेरेंट्स बेसिकली हमेशा यही बोलेंगे। तो जब मैं कर रहा था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं सेल्स क्लोज करता ना, तो हमेशा अपनी मम्मा को मैं दिखाता उंगली इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, कि एक सेल का मतलब 3,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, इस तरीके से, और दिखाता कि देखो आज इतना अमाउंट आ रखा है, इतना आपके लड़के ने आज इतना कर रखा है, इस वीक में इतना amount। तो वो जो फीलिंग होती है, जो वाइब होती है ना, अलग ही होती है। फिर जब एक बार अच्छा अमाउंट टच कर लिया, जब मम्मा को बताया कि कर लिया, फिर मैंने कहा छोड़ो छोड़ यार क्या बताना है बेसिकली। मम्मा को बताया आई कि फील। हाँ आप कर लेते हैं। हाँ अब तो उनको बिलीव है कि, अब तो ऑर्डर देती हैं कि हाँ इतने टाइम पे ही हो जाना चाहिए, इतने अभी अब घर बनने की बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि अप्रैल तक तो उतना कर लेगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर वही सेम चीज है। Yeah, same here happens with me also. When I share my income, when I share my income एक screenshots एक to my एक एक you'll see मिस्टेक that. एक मिस्टेक मैंने करी, एक मिस्टेक मैंने करी गाइस, आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने फैमिली को अपनी कंप्लीट सैलरी या कंप्लीट अर्निंग मत बताओ, कभी भी नहीं, नेवर एवर, लाइक कभी भी नहीं। आप जो कमा रहे हो उसका 70% बताओ, 50% बताओ। ये मिस्टेक बेसिकली मैंने कर दिया, बिकॉज फैमिली क्या सोचती है कि जो आप अर्न कर रहे हो आपका कंप्लीट प्रॉफिट है, प्लस में वो प्रॉफिट आपका हर मंथ आएगा, उनको ऐसा लगता है, बिकॉज वही सैलरी वाला माइंडसेट है। बट उनको नहीं पता ना भाई, लॉस भी तो होता है। उनको नहीं पता कि भाई अगर कभी इतना गया है, कभी इतना गया, तो उतना भी जाएगा बेसिकली, कभी ना कभी आपका वो चीज भी आपका आएगा। बट फैमिली को नहीं पता, और कभी उनको नहीं पता कि अगर कभी अमाउंट इतना जा रहा है तो एक्सपेंस इतना भी आएगा, तो आपका लॉस से भी बदतर चीज है वो तो। यानी ठीक मेरे है, तो साथ वो फैमिली, हाँ तो आप, और फिर वही एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ आप इतना देने वाले हो, उस मंथ ये खर्चे हैं, ये खर्चे हैं, वो खर्चे, वो खर्चे हैं। बिकॉज जब आपने उनके माइंड में रखते हो ना कि मेरा लड़का इतना कमा रहा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी तो आपसे उतनी बेहतर हो गई ना भाई। बट अब उनको मतलब थोड़ा ना है कि अगर आपका इस मंथ लॉस हो रहा है, हमें तो नहीं पता बेटा, हमें तो पता कि आप 1 लाख कमाते हो, हमें तो पता है आप इतना कमाते हो, अब आपके पैसे कहाँ गए। ठीक है, तो अपनी सैलरी आपका जो अर्निंग है मैं तो बताता हूँ कभी बताओ, और फिर आपका एक होना चाहिए सीक्रेट अकाउंट, और उस सीक्रेट अकाउंट में आप सारा अमाउंट बेसिकली वहां पे डालो, ठीक, वहां पे सेव करो प्रॉपर, एक बंदे को बता दो कि आपका अपना सारा अमाउंट वहां पे रखते हो, वो चीज आपका बेस्ट रहेगा। और वो जो सीक्रेट अकाउंट है वहां से आपके पास कोई कार्ड नहीं होना चाहिए उसका, ना ही आप वहां से कोई पैसे निकाल पाओ। आपको पैसे निकालने भी हो तो आपको जाना पड़े बैंक में, ऐसा रखो उस चीज को। Perfect. Even I agree with you on this point because ये हुआ है मेरे साथ भी। I share my income, complete income, जितना मेरी इनकम होती थी मैं अपने पेरेंट्स का शेयर करता था। तो मेरे हाउ फादर मच पर क्या, आप कितना कमा रहे हो ब्रो अभी, अब आप कितना कर रहे हो वैसे? यार सेम ही रहा, अमाउंट तो वही है जितना आपका है ना, 1.5 2। अभी लास्ट मंथ का, लास्ट नहीं, 1 महीने पहले की बात करते हैं, अगस्त में बहुत डाउन चला गया था। आई मीन मैं हार्डली 45-50 पे अटक गया था, राइट? इसके सितंबर या आई थिंक अगस्त की बात है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। अब उसी मंथ की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे लॉस होता है ना एड्स में, तो यार कुछ भी। अच्छा, मेरी एजेंसी है, राइट? तो हमने नया नया एजेंसी स्टार्ट किया था, तो बहुत फोकस डालना पड़ रहा था, टीम को ट्रेन कर रहा था मैं, तो मेजर टाइम वहीं पे था।
और जो हमारा वो मैक्सिमम आता है सेल्स से। अगर आप सेल्स कर रहे हो पैसा आएगा, सेल्स नहीं कर रहे हो तो पैसा नहीं आएगा, राइट। बाकी जो भी काम होता है वो बैकएंड का होता है, बिजनेस चलाने के लिए होता है, बाकी पैसा तो सेल्स ही आता है। तो उस महीने में ज्यादा उतना कर नहीं पाया था, तो मैक्सिमम टीम की ट्रेनिंग सेटअप, क्या प्राइसिंग रहेगा, कैसे हमें हैंडल करना है, सब कुछ ये सब चालीस प्लान चल रही थी। तो उसमें बहुत कम इनकम हुई थी। अब क्या हुआ, मेरे फादर को वो पूछते हर महीना मुझसे पूछते हैं कि इस बार कितना हुआ तुम्हारा, तो मैंने बताया कि इस बार 45 के करीब हुआ है। माय फादर इज सेइंग, इसीलिए मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब करो, क्योंकि क्या होता है ना कि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अप डाउन होता रहता है। राइट, दैट हैपेंड इवन अभी भी होता है वो, मतलब हाँ क्या बोला आपने जस्ट? की बात भी सही है, ठीक है, जब तभी करो क्योंकि यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट इनकम तो आएगा। बट वही है ना कि इट्स वही है ना, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस यार। व्हाट डू यू वांट, लाइक डू यू वांट दिस और दिस? इफ यू वांट दिस कंसिस्टेंटली देन वो करो बेसिकली, बट इफ यू वांट दिस देन डोंट कंप्लेन। यार पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरे को ना एक ऐसा सेम ग्राफ पसंद भी नहीं। अगर मैं 50,000 अर्न कर रहा हूँ, 1 लाख अर्न कर रहा हूँ, 2 लाख रुपीज अर्न कर रहा हूँ, वो एकदम कंसिस्टेंट है तो मजा ही नहीं आता। थोड़ा ऊपर नीचे तो एक एक बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसा एक पिज्जा डेली खिलाया जाए तो आई थिंक आप हिट करने लग जाओगे पिज्जा से भी, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, भले वो जंक फूड है, राइट। आपको नहीं मजा है खाने में। थोड़ा चेंज पसंद है मुझे भी, राइट। मुझे एक ही चीज नहीं पसंद है, थोड़ा कभी लॉसेस होते हैं, डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी होता है, आई एग्री विद दैट, राइट। और मुझे मजा भी आता है उसमें से निकलने के बाद, जो एनर्जी होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है, राइट। सो वो विनिंग की फीलिंग आती है कि चलो ठीक है मैं लॉस में गया बट अगेन आई रिकवर्ड इट, राइट। वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। जैसे अभी हमारा भले उसमें 40 के गया था, बट अगेन यार मेरे को एक रिमाइंडर आया कि यार हाँ देखो सारी चीजें ठीक है बट मैनेजमेंट बहुत सही होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग के साथ आपको सेल्स भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी क्या होता है ना, पहले मैं अकेले काम कर रहा था, देयर वाज नो रिस्पांसिबिलिटी, सिर्फ मैं मेरी फैमिली, बस 2 लोग की रिस्पांसिबिलिटी। बट नाउ आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय टीम आल्सो, राइट। और फिर जैसे ना आप कोचिंग बिजनेस के अंदर आते हो ना, फिर आपकी सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ फैमिली, टीम, एम्प्लॉइज यही नहीं रहते, सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्यों भी आपको वैल्यू दे। अच्छा, एक और चीज मैंने बड़ी कॉमन देखी है, लॉट ऑफ पीपल से दैट कि यू आर चार्जिंग वेरी हाई, राइट। इसका भी मेरे को एक बड़ा अच्छा जवाब मेरे को याद आ रहा है यार, कि पता है अगर हम चार्ज नहीं करेंगे, वी डोंट टेक द मनी फ्रॉम पीपल, राइट, देन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गिव द बेस्ट टू माय ऑडियंस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हमारा कोर्सेज बाय कर रहे हैं, मेंटरशिप के अंदर सारे, आई डोंट थिंक मैं अच्छी वैल्यू दे पाऊंगा, राइट। बिकॉज कहीं ना चीजों को आसान करने के लिए, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उसको आसान करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए भी हमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं सर? डू यू एग्री विद मी और नॉट? I agree man. Right? And मेरे go on. You're investing 40,000, 30,000 rupees a month in your business. Why you are investing? Just to make that process easy for people, right? क्योंकि ultimately क्या होता है, let's say I am having an immense knowledge with me, ठीक है, बड़ी अच्छी knowledge भी है, but what if I am not taking to the people? अगर वो लोगों तक जा ही नहीं रही है, तो इसमें नुकसान ज्यादा किसका है? I don't think मेरा है, उनका ज्यादा नुकसान। And कहीं ना कहीं ब्रो, आई डोंट बिलीव इन कोर्सेज, राइट। कोर्सेज ठीक है यार, कोर्सेज ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट मेरा थोड़ा सा मानना है कि कोर्सेज से बेटर अगर आप बाय कर रहे हो तो ट्राई करो टू गेट मेंटरशिप, राइट। ट्राई करो टू गेट कम इन कम्युनिटी, बिकॉज सी अगर मैं अपने कम्युनिटी से अपना एक्सेस हटा दूं, आई कैन इजिली लाइक व्हाट मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाफ कर दूंगा कंप्लीटली, सीरियसली। उसको प्राइस कंप्लीट हाफ कर दूंगा, 50% कर दूंगा। अभी जो उसका प्रोडक्ट का प्राइस है उसको मैं कर दूंगा 50 कंप्लीटली, अगर मैं अपना वहां से एक्सेस हटा दूं। जस्ट बिकॉज क्या बोलता हूँ कि यू विल गेट माय पर्सनल एक्सेस, बिकॉज आई नो यू कांट मेक मनी बाय वाचिंग कोर्सेज। आप कोर्स देख के मैंने बता दिया कि ये स्ट्रेटजी यूज करो, आप नहीं कर पाओगे सेल, सॉरी भाई, ठीक है। आपको चाहिए कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा प्रॉपरली, और आपको कॉल पे आना पड़ेगा मेरे साथ में। तो दैट्स व्हाई जहां पे मेरा पर्सनल एक्सेस जा रहा है कंप्लीटली, उनको जरूरत है, जहां पे मेरी उनको एट द टाइम सोल्यूशन मिल रहा है, मैंने बोल रखा कि हाँ दैट्स व्हाई जो उसका प्राइस है बेसिकली यहाँ पर ही है। इफ यू वांट कि आपको बस कोर्स मिल जाए, यू कैन टेक 50% ऑफ है आपको बेसिकली, आप उसको ले सकते हो अपना आराम से, सिंपल, ठीक है। मेरा भी हाँ हाँ, बिकॉज क्योंकि कम्युनिटी रहती है ना, वी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर जैसे हमने भी जो भी मुझे आज तक ग्रोथ मिली ज्यादा अच्छी, वो कम्युनिटी की वजह से, इट्स नॉट अबाउट कोर्स, बिकॉज कोर्स इज समथिंग व्हिच यू आर वाचिंग अलोन, राइट। देयर इज अ पर्सन हु इज टीचिंग यू एंड यू आर द पर्सन हु इज लर्निंग, सिर्फ दो माइंड लग रहा है। But when we have the community access, so we are talking to multiple people. For example, एक छोटा example है, let's say हमने कोई ऐसा वीडियो का ही कोर्स ज्वाइन कर लिया, right? So many people are putting their videos on the groups, right? You're watching their videos, अगर आपने 10 वीडियो भी देखा, you got ideas, more ideas, कि एक आइडिया उस वीडियो से पिक किया, एक इसमें से, टोटल आपने 10 आइडियाज पिक किया। कहीं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लग गया, कहीं पे आपको उनका हुक बहुत बढ़िया लग गया, किसी का कॉल टू एक्शन बहुत बढ़िया लग गया। So when you create your video ना, उसके अंदर सिर्फ आपकी और उस आपके मेंटर की नॉलेज नहीं है, right? You are being inspired from 10 other people. जो आपका वीडियो बनता है फिर वो like amazing, okay? Agree, man. Right? So that's the thing that I think
सेम चीज मेरा भी है कि मेंटोरशिप में अगर आप जा रहे हो, कम्युनिटी एक्सेस मिल रहा है तो गो अहेड, भले थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े। Even we can ask for the review from people, right? Let's say हमने कुछ बनाया है, अपना भी कुछ बनाया, फनल बनाया है, हम लोगों से पूछ सकते हैं कि कैसा है, क्योंकि एक हमारे मन में बहुत एक डाउट रहता है, हमें लगता है कि यार हम जो कुछ भी करते हैं ना, हमें लगता है यार ये बेस्ट नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, हमें इसमें इम्प्रूव करना है, राइट? और हम उसी चीज के अंदर अटके रहते हैं, वी कीप ऑन इम्प्रूविंग। अच्छा, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, लेट्स से मेरा कल वेबिनार है, मैं पीपीटी बनाने का सोचा हूँ आज, ठीक है, तो पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के अंदर ही मेरे को 6-7 घंटे लग जाए भाई, लगता है मुझे बहुत टाइम लगता है पीपीटी बनाने में। लाइक इवन जब मैं डिफरेंट वेबिनार करता था, मैं हर मंथ डिफरेंट वेबिनार कर रहा था, तो मुझे हर मंथ डिफरेंट पीपीटी नहीं पड़ती थी, डिफरेंट पीपीटी, डिफरेंट प्रमोशन, डिफरेंट उसके अंदर सारे प्रमोशन के सारे पार्ट, ठीक है। तो एक पीपीटी बनाने में सीरियसली 4 to 5 आवर्स लगते थे मेरे को। ऑनेस्टली अगर आपसे मैं पूछूं कितना टाइम आपको लगता है, ऑनेस्टली अगर आप ये इम्प्रूवमेंट के पीछे ना भागो तो कितना टाइम आपको लग जाए प्रेजेंटेशन बनाने? आई डोंट थिंक हार्डली 2-3 घंटे, एटलीस्ट 4 आवर्स सीरियसली 4 आवर्स, राइट? हाँ, 4 आवर्स आपको लगते हैं। डिपेंड करता है फिर कितने घंटे की है, बिकॉज मतलब कितनी देरी, जैसे कि 100 और 150 मेरी पीपीटी साइज आता है, वो 150 आता है, तो 150 पीपीटी बनाने के लिए कम से कम हमको 4 आवर्स मुझे लगता है, क्योंकि फिर उसको कंप्लीटली सही करना है और सारी चीजें, तो लग जाता है इतना। तो बस जितने कितनी सारी पीपीटी बना रखी है यार, बहुत ही हीटिंग प्रोसेस है ये, बट फिर वही लगता है कि और कोई कैसे कर पाएगा एंड ऑल, वही सारे माइंड में आते हैं बस। ट्रू यार, मुझे भी यही सबसे बोरिंग काम लगता है, प्रेजेंटेशन बनाना। कंटेंट प्लान करना इज परफेक्ट। आप कंटेंट कहाँ प्लान करते हो, डॉक्स पे या नोटपैड पे, कहाँ पे? कॉपी पेन। अच्छा, कंटेंट कॉपी पेन में मैं तो गूगल डॉक्स यूज करता हूँ, पर वहां पे प्लान करना ठीक लगता है। आई स्ट्रक्चर द ट्रेनिंग एंड देन फिर वी गो फॉर द प्रेजेंटेशन क्रिएशन, राइट? बट हाँ, बोरिंग काम सबसे प्रेजेंटेशन क्रिएशन अपना अपना है, मुझे तो सिर्फ बेस्ट लगता है कॉपी एंड पेन लगता है, उस पर ऐसे करना। कॉपी एंड perfect. So said, being very honest, it is 8:42, right? हमने 7 पे स्टार्ट किया था, मैंने नहीं सोचा इतना लंबा हमारा चलने वाला है, right? But it was crazy experience, it was crazy talking to you, right? It was a nice conversation and I think आप सभी को भी काफी अच्छी वैल्यू मिल रही होगी इस एंटायर सेशन के अंदर, इस जो आपने पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट देखा है। So thank you so much, Sid, for sparing your valuable time and to coming for this podcast, गहराइयाँ, right? And I think लोगों ने आज आपको बड़ी गहराई से जाना होगा, जो क्वेश्चन उनके दिमाग में थी वो आज सॉल्व हो गया होगा, राइट? तो हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एक छोटे से मैसेज के साथ। आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बट उनका कुछ हो नहीं रहा, 2-3 महीने लग गए, कुछ नहीं हो रहा, क्या मैसेज देना चाहोगे? सी गाइस, अभी आप, आई डोंट नो कि आप क्या स्टार्ट कर रहे हो, कुड बी एफिलिएट मार्केटिंग, कुड बी फ्रीलांसिंग, कुड बी आप खुद के जैसे स्टार्ट कर रहे हो, कुड बी लाइक आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि जस्ट पहले सीख लो यार, पहले सीख लो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो कि सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं बट वो सीखते नहीं है। मैं सिंपल आपको बोलूंगा यहाँ पे कि एक जो लाइक बड़ी से एक जो 5 स्टार में होता ना, जो बंदा चाय वाय लेके आता है ना, और सारी चीजें, उसकी भी ट्रेनिंग होती है 5 to 6 मंथ की, तब जाके फिर वो जाके मार्केट में काम कर पाता है। दिस इज सिमिलर कि अगर आप एक वॉर में जा रहे हो कंप्लीटली, तो फिर आप वॉर में आपको ऐसी जगह दे देंगे, भाई चलो बंद चला, चलो कर दो, आपकी ट्रेनिंग होगी 3-4 साल की, उसके बाद जाके आप जाओगे वहां पे। सो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, किसी सेल्स के अंदर हो, मार्केटिंग के अंदर हो, तो फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। अपने को प्रॉपर ट्रेन करो, उसके बाद फिर टेस्ट एंड ट्राई करो, सारी चीजें ट्राई करो क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए, और आपके ही फील्ड पे जो बेस्ट लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, ट्राई करूंगा टच में आने के लिए, समहाउ टच में उनके, अगर उनका कोई कोर्स है, कोई प्रोडक्ट है, और इस चीज के लिए नहीं कि उन्हें सीखना है, उनके साथ पर्सनल टच में आने के लिए समहाउ टच में हो, बिकॉज अगर आपने उनके साथ कनेक्शन बना लिया तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्लस हैव पेशेंस, क्योंकि चीजों में आपका टाइम लगता है यार, टाइम रहेगा, अगर आपका पेशेंस रहेगा, डेफिनेटली यू विल गोना क्रिएट एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि वर्क बिहाइंड स्किल्स, राइट? और बड़ी सी लाइक रन बिहाइंड स्किल, मैं वर्क बोल रहा हूँ, रन बिहाइंड स्किल्स के पीछे भागो, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। Even the same advice from my side also for the people who are starting their journey, right? जो लोग अपना नया नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं और रिजल्ट को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं, पहले चीज तो ये कॉमन है, राइट? ये होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है और अभी भी होता है, राइट? मेरा भी रिजल्ट डाउन होता है तो मेरे को थोड़ा सा लगता है यार कि सेटबैक किया, इतना हार्ड वर्क किया, नहीं हुआ। बट द बेस्ट पार्ट इज बी कंसिस्टेंट, काम करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जो एक सबसे बेकार चीज जो मैंने भी की है अपनी जर्नी के अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने नहीं किया है, आई थिंक सिड ने भी की होगी, राइट? बट वन थिंग जो आपको याद रखनी है कि भाई ठीक है, अगर आपको आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बी कंसिस्टेंट, गिव अप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपने गिव अप कर दिया है तो जो रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं या आने वाले थे वो भी आपके पास बंद हो जाएंगे। तो यस, जस्ट बी कंसिस्टेंट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। So thank you so much for coming here and I hope people love this session and yeah,
मेक श्योर गाइस यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आने वाले टाइम पे बहुत सारे गहराइयां के शो आने वाले हैं. ये फर्स्ट शो था, आई थिंक आपको इसमें बड़ा मजा आया होगा. आने वाले में और बढ़िया होंगे और गेस्ट आएंगे और आपको वैल्यू मिलेगी. व्हाट डू यू सजेस्ट Sid, how was the session? I mean, आपको कैसा लगा गहराई? It was really good, brother. It was really good. मुझे काफी मजा आया. ठीक है, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है, नेट का इशू एंड और सारी चीजें हुआ, बट स्टिल इट्स कंप्लीटली फाइन. काफी मजा आया. आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि मैं आंसर कर पाया प्रॉपर आपके सारे क्वेश्चंस को. एंड वही फिर डिपेंड करता है कि लोग क्या कमेंट करते हैं. हाँ सही बात है, बिकॉज मुझे सारे पर्सनली बहुत बढ़िया लगे, बट इट इज नॉट अबाउट अस, राइट? इट इज अबाउट पीपल, राइट? वी आर डूइंग इट फॉर पीपल. इवन क्वेश्चंस भी हमने ज्यादातर लोगों के लिए पिक किए थे ताकि उनको आंसर मिल सके इस पॉडकास्ट के, राइट? अच्छा, आपको नाम कैसा लगा? दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ दिस शो गहराइयां, तो आपको ये नाम कैसा लगा गहराइयां? बढ़िया ब्रो. लाइक जो नाम था बेसिकली काफी सही था. वो रीजन बिंग बिकॉज मैं अपने पॉडकास्ट का नाम सोच ही नहीं पाया था. ठीक है, लाइक मैं सोच रहा था कि क्या रखूं. मेरा इवन पहला जो सीजन है वो चला, खत्म भी हो गया, कंप्लीटली डन भी हो गया, बट फिर भी मैं उसका नाम रख ही नहीं पाया. ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने उसका नाम रखा है द लेवल ऑफ पॉडकास्ट. ठीक है, मतलब कि द लेवलर पॉडकास्ट, द लेवल अप मतलब जहाँ पे अपना आप माइंड सेट और एटीट्यूड को लेवल अप करते हो, तो मैंने ये रखा है द लेवल अप पॉडकास्ट विद सेट. तो अभी स्पॉटिफाई पे वहाँ पे चल रहे मेरे, मतलब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे डाल रहा हूँ. अभी 2 लोग का पॉडकास्ट नहीं हो रहा, अभी स्पॉटिफाई पे मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे. बट उस स्पॉटिफाई में मेरे माइंड में आइडिया नहीं था. मैं सोचा था कि क्या डालूं, सिड द सिड शो, द सिड पॉडकास्ट, बड़ा अजीब सा लग रहा है. तो गहराइयां बहुत अच्छा नाम है, काफी शायराना नाम है ये, अमेजिंग है. इवन यार ऑनेस्टली मैं ऐसे बस बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में आया कि यार मैं हर पर्सन की गहराई में जाता हूँ. इवन पता है, मैं इस पॉडकास्ट से पहले मैं अपनी टीम को बोला था, उनको स्ट्रैटेजी बताया हाउ आई चेक, राइट? तो उनको बोला कि आप उनका पूरा प्रोफाइल चेक करना, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, हर जगह हाईलाइट चेक करना, कमेंट्स चेक करना स्पेशली, राइट? और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत लंबा सा मेरे पास आया है मैसेज उनका बहुत इन्फॉर्मेशन है, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं डाले आपको, राइट? तो बहुत अच्छी रिसर्च किया है. तो बेसिकली वही से मेरे को आइडिया है कि यार मुझे हर चीज है ना गहराई में जाना बड़ा पसंद है लोगों की जर्नी के अंदर. तो आई थिंक गहराइयां नाम इज द बेस्ट. सुपर मैन. एंड आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया ये पॉडकास्ट. सो आई थिंक दिस इज डन. सो thank you so much people for watching this podcast. I'll see you in the next podcast. Till that time, bye bye, and yeah, have a great day. Bye bye. Bye bye everybody.